before moving further and before giving you some idea, allow me to tell you that Dr. Lalit Gupta, who is going to be our plenary speaker, and we have been hosting him for quite some time now. और हम जो हैं मतलब we have met also in person as well as online mode as well, and he's a cultural historian, and this is the best thing. He has owned a PhD degree from University in Jammu, I guess so, a long time back, and he has been associated with us on the platforms of culture as well as Jammu through the ages, as well as a few days back on when we had a seminar on the Dogri culture, and we will also like to host you more on these platforms. So, sir, first of all, thank you so much for joining us and accepting our request and be our chief guest today. So, without much delay, I will request you to kindly address the gathering and present your plenary speech. Thank you, sir. Thank you, Sumanta. Thank you, SMVDU, Nagendra Singh ji, and all the participants, Sumer ji, Kewal Krishan ji from Kishtwar, Manu ji, Shreya Mudgil, Virendra ji, and the people I can see here, Shiv Kumar Pada ji, and others. It is my privilege to be the so-called chief guest here in this function. I would have expected a veteran scholar, Sanskrit scholar, or a kind of other personality to. I may add that Dr. Gupta will be presenting his talk on Shakti Cult in Jammu, a socio-cultural study. So he has also prepared a PPT for all of us so that we can have a better understanding of. I'm audible. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. Please. So the title says this Shakti Cult in Jammu, historical, socio-historical study. Before we go into the micro aspect of this Shakti Cult, I'd like to take you to the macro thing in the terms of universal instinct of the mother worship. And this is the sculpture called as Venus of Willendorf. It is from Austria, and it represents what is called as the Paleolithic expressions of the earliest images which man created to worship the mother aspect. Now, the mother aspect to mother goddess, there is a great transformation in terms of socio-cultural ideas and ideology. But the mother aspect has been attracting human beings right from the prehistoric times. And the aspect of procreation in nature, the flowering, the animals giving birth to another animal, or the female species as the progenitor of the race, and all that. This has been this led through time to worship of the fertility aspect of in nature, and it is best represented by the female in the human species. Now, this is what is lost in the midst of prehistory times. And then suddenly we have this, what is called, Indus Valley is no more called as Indus Valley, it is Saraswati Indus Valley culture. And this mother goddess figurines have come from Harappa and other areas, and Mohenjo-daro also. Now, by this figure, we are in the 6000 BC era, and then this continues in terms of another expression, the dancing girl, that is a metal sculpture. You must have all read these, seen these pictures in the school notebooks. But in terms of
the expression of the mother aspect worship. So this is a kind of expression which is pan-human. It is not even pan-Indian, but in all generations, in all civilizations of the world, mother aspect has been worshipped. Now, how it transforms into a kind of spirit worship, into a kind of worship of a powerful expression of nature, the whole shamanistic aspects, the whole folk associations with this concept. So that is how the historical evolution. But interestingly, in our area, that is this is a bone plaquette discovered from Guru Baba Katibba by the Archaeological Survey of India during the excavations in 90s. I was a part of that. I was just a visitor there. So this bone plaquette, this is a female figure, right? So I did some research on it, and I found that these figures have been also found in central India, in Madhya Pradesh. So this is tentative 600 BCE. Now, the images which come to us, they are the personification of the ideological bases which are popular in the society. Now, we all know that the society operates on two levels. The subaltern and so-called the elite are the high or the low. These terms are no more applicable in the sense because they speak of the hierarchies. But as such, this figure is very interesting in Jammu. Because on one hand, 600 BC is the time of the Mahajanpadas. 16 Mahajanpadas form, Madhya Pradesh becomes important. You have the Kashmir, the Gandhar, the Kakai Pradesh, others, Anga, Banga. So, the political development is quite evolved in that. But at the same time, at the folk level, imagine 600 BC area of Jammu full of forests and the kind of tribal groups must be living here, and they are worshipping. They are putting it as a pendant it's a small object in their neck as a kind of talisman, as a kind of protection, and then we move on to next stage. So suddenly I have taken a jump to 10th century and 9th, 8th century. Now, this jump from 600 BC to some 700 AD is almost 1100 years. So the entire concept of Shakti develops in these times. This is in fact Ganga and Jamuna on the door jambs of temple gateway. Now the Ganga Jamuna sculptures in art itself is a separate issue because in the initial centuries they're at the bottom level, and as the time goes by 11th century they come on the top of the Ganga Jamuna. In the Devi temple at Manwal, they are at the top, their location there. But that is something. Now we come back to the Shakti concept, or the concept of female. In Indian cultural context. So this I just wanted to give you a kind of visual, standpoint to visualize that how this aspect later develops into the forms of Mahishasura-Mardini, Ardi Durga. Now these forms in Jammu, most of these sculptures are found of Mahishasura-Mardini, and also Durga and other Kalika, Chandi. We shall talk about that. So I just keep them as a reference for our talk. Now the concept of Shakti comes from Rigveda. The idea of Shakti is found as old as the Vedas, and then it is in the epic literature. Epic literature means the Mahabharata, Ramayana and Puranas, where the concept evolves. And then the most important and the popular mythological narrative about Shakti is that of the Sati.
the Daksha, when she was born as a Daksha's daughter and wife of the Shiva, and then she goes uninvited to her father's, yagna, and then, sensing the kind of insult to her and to her husband, she sacrifices herself in the fire, and then, and then infuriated Shiva, he moves on and he sends his ganas and all that. There is an entire description of that, and then he lifts the body of the dead Parvati and this Sati, and he becomes vikshipta, and then he moves around the areas, and then because of the intervention of Lord Vishnu, Bhagwan Vishnu, the parts get scattered, and wherever these parts fell down, they became the Shakti Pithas. And when we study these Shakti Pithas are, what is a Pitha? Pitha is a kind of seat, a shrine, or a pedestal. In general, it stands for the Shakti Pith, which refers to number of places of feminine power in India. So, historical development of the concept of Shakti from the Rigvedic legend to the idea of Shakti Pitha found in the Mahabharata, and then to Puranas, and then to the story of the Daksha's sacrifice. All these have led to the formation of the concept of Shakti. Now, as far as the Pithas are concerned, they have been variously mentioned from 4, 18, 51 to 108. The number of Shakti Pithas. Interestingly, the Sharda Pitha in Kashmir finds mention every time. And it is in the later times that the Pithas of Himachal and Jammu, like Vaishno Devi and the Jwalaji, they appear in the version of 51 Pithas. So there is a detail of that. Now, this is in short about the Shakti Pithas. They are in Kamakhya. I can give you a list of this if you want. See, out of 54, perhaps, only 41 are in India. Rest are in other parts of the subcontinent. They are in Sri Lanka. They are in other areas. Now, the Pithas are Shankari, Kamakhya, Pradumna, Chamunda, Yogya, Brahar, Ambika, Mahakali, Ekaviraka, Viraja, numbers of them, and they vary. The list tells us about the goddess, the place, they are all connected, and also which part fell where. This is very important. Like, we have a later day Shakti Peeth here called Chichi Mata in near Samba. Now, Chichi is the little finger in Dogri. So, it is supposed that her little finger fell there. Now, similarly, I will give you a list of just to Hingola. This is top of the head. Then Karavira, Trinetra, 3 eyes. Sugandha, Nasika. Vidyanath, Hridaya. Nepal is this knee, Jangha, Janu. Malwa is Hasta. And things like that. Nabhi, Gandha, left arm, elbow, right foot, left foot. All the parts, like Kamakhya, you have the yoni there. Now, similarly, all these Shakti Pithas have been enumerated in various texts, and there are a lot of the magisterial studies by D.C. Sarkar, the early iconographers of India. They have gone through the literature in Sanskrit and created a wonderful list of Shakti Pithas.
There is also a concept that the 51 Pithas were almost on the Sanskrit letters, each related to one of the letters of Sanskrit. Now coming back to our own mythology in Jammu. Jammu, we have Jammu. I don't mean the areas near the plains, but Jammu I mean Bhadrawa, Kishtawad, all along the south of the Pir Panchal to Poonch, Rajouri, and these districts, our district of Udhampur, etc. Here two strands work. One are the yoginis, and those kind of female goddesses, which are local goddesses, and other are the Brahminic, which have a kind of association with the Shakti Cult of the Pan-Indian Association. So you have the Durga, you have the Vaishno Devi, you Chamunda, Kalika. These are the associated, with certain sites in Jammu. You have this Sarthal, you have near Bilawar, what is that, Sukrala Mata, and things like that. There is another aspect that local mythologies have developed. There is a, most of these places of worship, they are also associated with pilgrimages. And pilgrimage in India is a kind of, is a pan-Indian phenomena, and even the Lord Buddha also advocated pilgrimages. And even Mahabharata, there is one parv on the Tirth parv associated, describing all the Tirthas. There are Tirthas are at the places of spiritual importance, places of power. But then there is another aspect of Tirthas, which is called surrogate Tirthas, surrogate pilgrimages. The surrogacy in terms of replicating a spiritual place like Haridwar. Haridwar is at Haridwar, right? But we in Sudh Mahadev, we have a Haridwar. So there is a Sangam in Prayagraj, but in Kishtawad there is also Sangam here. In Kashmir there are many places which are called Sangam, and those local places they get a kind of sacred character. The sacred geographies are created, and similarly there are many places in Jammu which learned speakers will take up area wise, that they are associated with female power. These could be, and then the ultimate what is called as the localization in terms of the female principle is the Kul Devis, which are a phenomena in Dogra communities. The ordinary family member, a female family member, is elevated after her sacrifice for a social cause or others, and then in process of time she is deified, she becomes a deity and worship, and she becomes a Kundevi, Syavati, Sati, that kind of thing. This is a parallel folk religion tendency. So it is in this light, because there is a tendency to say that Vaishno Devi is from prehistoric times. Unfortunately, in all 70 years of scholarship in this state, and especially in the Jammu region of the universities, there is no systematic study of the development of the religious practices in Jammu. See, we are only talking of Shakti worship today, but there are parallel strands of Shaivism, Naga worship, and Vaishnavism. So there are periods of overlapping between these tendencies. It all depends on other factors, political, social, cultural factors, and they have to be studied. In the last, I would like to add that Neelam Quran is very important text as far as the transformation of the Vedic rituals to
the later day Puranic, kind of religious worldview which is created there. So it is in Neelmat Puran that we study. Then the worship of the rivers starts. Like rivers have Devis, Vitasta for that matter. Or in Jammu we have Devika. Now Devika, see, the point is I can go on. Jammu finds mention in the Rig Veda. We have the battery of scholars like J.C. Sathe and Shri Satpal Srivas, or our venerable Professor Vedghai. They have worked on these sources and literary sources and try to create a picture of the Dogra land because of the Sapta Sindhu. I mean, the rivers mentioned in the Rig Veda, the Askani, Chahnab, and Vitasta, and other, they figure Ravi, etc. They figure into that. And then we have this Devika, the Ak, and other rivers also mentioned. But it is only in the later times, the 6th and 7th century, that the rivers start getting worshipped. So this whole shift from the Vedic fire worship to the Puranic personification of the rivers as aspects of Devas, Uma for that matter. Devika is the sister of Uma. Uma comes here to take bath, kind of thing. And so this is very interesting. And I hope with the SMVDU taking initiative, we will be, soon having a kind of clear picture, or some kind of a picture about the development of religious ideas and concepts in Jammu region. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your presentation as well as for your speech, because this is how we learn from people like you. And thank you so much for sharing your knowledge as well as wisdom with us. It is indeed something which we have already thought of, that we will be holding lots of offline seminars as well as conferences, and we will be delving deep into the history, culture, and the geography of this place, because that is something which is still to be worked upon, and something which we can pick up. And that will not only be a novel contribution to this place, as well as to the I will say to the knowledge database, but is also going to be something where we will be learning a lot of things which we have either forgotten or we are either misusing it, and so on. And that is the whole idea. Therefore we are first trying to build up upon this theme, and then we will be working more on that. So thank you so much, sir. Thank you for your patience, as well as for all this internet glitch which we are facing these days. But still you came up and you presented, and we look forward to meet you as well as to host you again at some other platforms as well at Shri Mata Vaishno Devi University. Thank you, sir. Thank you so much. I will request Shri Sumer Khajuria Sahab. Sumer Khajuria Sahab will be presenting on Shri Mata Vaishno Devi ke Pradurbhav evam Itihas. Yes, sir. Yes, sir. Before I start my presentation on the subject, I congratulate all of you on this auspicious day of 26th October, when our state was integrated with India, and that was the historical day when we are part of our great nation, India, and we are proud for our this day. More specifically, when this day is being celebrated as Accession Day across the state, and not only here, even in India also. Sir, मेरा जो है आज का सब्जेक्ट माता वैष्णो देवी पर ही रहेगा, जिसमें माता वैष्णो देवी की अपनी जो सिद्ध पीठ है, और इसके साथ नौ देवी और देवी पिंडी, ये इनके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, और इनको सबको मैं जो है कवर करूंगा। बात ऐसे है कि माता वैष्णो देवी का जो जन्म
ये सिद्ध पीठ नहीं है, ये साक्षात खुद बैठी है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी 3 रूपों में आती है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। और इनके जन्म का पीछे विवरण इस प्रकार गिना गया है। वैसे तो माता शक्ति का जो है स्वरूप हर युग में आया है, लेकिन इसका जो माता वैष्णो देवी का विशेष रूप से जो इसकी उत्पत्ति हुई है, उसका कारण जो था वो त्रेता युग में गिना गया है कि जब राक्षस जो थे जहां धरती पर उपद्रव मचाए हुए थे, तो उस समय धरती माता दुखी होकर वो भगवान शंकर के पास गए, वो ब्रह्मा जी के पास गई और वो विष्णु जी के भी पास गई, और सभी ने अपने आप को असमर्थ दिखाया था, क्योंकि रावण ने भगवान शंकर से इस किस्म के वरदान लिए थे कि वो खुद तो वापस नहीं करते थे, लेकिन ये विष्णु और ब्रह्मा ये उनके डर के मारे उनके आगे नहीं आते, क्योंकि रावण उनका परम भक्त था। उस समय धरती माता ये तीनों जो महादेवियां जो भगवान की अपनी कंजार्ट्स थी, जिनमें सरस्वती थी, महाकाली थी और ये वैष्णवी थी, तीनों के पास गई तो उन्होंने हिम्मत दिखाकर अपने शक्ति से ये एक देवी को उत्पत्ति किया, जो तीनों की उन दिव्य रूपी शक्ति से ये वैष्णवी जो ये तैयार हुई। और इसका जन्म कहा जाता है कि त्रेता युग में दक्षिण भारत में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर सागर और माता जी का नाम समृद्धि था। ये माता वहां उनके जब बहुत ये रत्नाकर और समृद्धि जो की कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने माता की पूरी आराधना की और औलाद के लिए ये वहां आराधना करते करते एक दिन माता ने रत्नाकर को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपके जन्म लूंगी, लेकिन मुझे ये एक वायदा करो कि मुझे मैं जो भी कुछ करूं मुझे कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं हो। रत्नाकर जी ने उन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त किया और दूसरे ही दिन माता वैष्णो देवी का उनके घर में जन्म हुआ, जिसका नाम वहां त्रिकुटा रखा गया। ये माता वहां 9 साल की हुई तो उन्होंने तपस्या जो है शुरू कर दी, और चलते चलते इतनी तपस्या की विष्णु भगवान की कि वो एक बार जब रावण और भगवान राम का युद्ध चल रहा था, समुद्र के किनारे उन्होंने देखा, वानर सेना के साथ भगवान वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि ये दिव्य रूपी कन्या कौन हो सकती है। वो वहां गई तो उन्होंने वहां पूछा कि ये आप कौन हैं। उन्होंने उस वक्त इस त्रिकुटा ने बोला कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति कर रही हूँ और मैंने उनको पति रूप में स्वीकार किया है। तो उनको जब पता चला भगवान को कि ये मेरी ही तपस्या करी है, उन्होंने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, तो मैं दूसरे जन्म में कल युग में जब यहाँ पृथ्वी पर आऊंगा तो उस समय चलो मैं आपके साथ शादी करूंगा, तब तक मैं ये यहाँ जो है ये आपको तपस्या करनी होगी। उनके ही विश्वास से, उनके ही अपने वरदान से, एक तो उनका नाम वैष्णवी पड़ा विष्णु भगवान के नाम पर, और दूसरा उनका वहां से तपस्या करते 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 उन्होंने भगवान राम की जीत के लिए, विजय के लिए भी तपस्या की, जिससे उनको बहुत बड़ी जो थी शक्ति जो थी पर वहां से विष्णु भगवान से मिली। कहा जाता है कि उसके बाद माता वैष्णो देवी वहां से चलकर तपस्या के लिए, वो जैसा कि भगवान ने बोला था कि आपको कल युग तक तपस्या करनी होगी, उसके बाद हमारी शादी होगी, तो वहां से चलकर वो हमारे संयोग से जम्मू कश्मीर में इस जो पहला जो था पड़ाव
उनका कौल कंडोली जो था वो गिना जाता है। कहते हैं कि कौल कंडोली नगरोटा के पास, वहां उनका स्थान पहला गिना है। वहां उन्होंने कन्याओं के बीच जो वहां खेल रही थी, वो झूला झूल रही थी, उनमें आकर बैठ गई और उनके साथ खेलने लगी। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है। उन्होंने, जिसे हम डोगरी में कटोरा बोलते हैं, वो कटोरा लेकर उनको बोला कि जाओ जल ले आओ। वो सूखी जगह थी कौल कंडोली जहां बोलते हैं, वहां उसने कटोरे को जो था वो जमीन के साथ उसको थोड़ा घिलाया, तो वो उसी का नाम जो था कौल और घरौनी जैसा वो लफज बना, जिसे बाद में कंडोली कंडोली बोलते हैं, कौल कंडोली, वो उनका पहला स्थान था। दूसरा जो है देवा माई माता वैष्णो देवी, वहां से पैदल चलकर, जहां देवा माई जो है कटरा से नीचे एक जगह आती है पहाड़ी के किनारे, वहां गई। वहां एक बूढ़ी स्त्री को वहां उसने जन्म दिया, आपने दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद उसके नाम पर ही वो देवा माई के नाम वो जो थी वो जगह आज भी जो है प्रसिद्ध है। बेशक वहां आज कम लोग जाते हैं क्योंकि पैदल रास्ते में वो जगह आती थी, आजकल वो एक साइड पे है, लेकिन लोग स्पेशली वहां दर्शन करने जाते। उसके बाद कहा जाता है कि श्रीधर जी, जो कटरा के पास अंसाली के रहने वाले थे, अंसाली गांव खाली साथ में जुड़ता हुआ है, वहां के रहने वाले थे, उनको रात को दर्शन दिए। वो बहुत निर्धन ब्राह्मण थे। उनको कहा कि आप कल जो है मेरे नाम का भंडारा करो। तो वो उसी विश्वास से उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसने कहा उसका इंतजाम मैं सारा कर दूंगी, आप इसका जो है भंडारे का इंतजाम। कहते हैं वहां से वो भूमि का जगह जो है वहां पर स्थान था, वहां पर उन्होंने अपना भंडारे का जो था वो पूरा प्रबंध, माता कहा कि वहां हम करेंगे। और श्रीधर पूरे एरिया में अपने निमंत्रण देने भंडारे के लिए वो सबको कहने चले गए और लोग वहां इकट्ठे हो गए। वहां कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन देवी भगवती ने वहां चमत्कार दिखाया और सबको अपने करमंडल से यथा जो भी पकवान वगैरह जो भी चाहते थे, सारा जो था वो अपने हाथों से। सबसे बड़ी बात जो है चमत्कार वाली, कि वहां पर उनके पीछे गोरखनाथ जी, जिन्होंने उनकी जो थी दूर, वो अपनी जो थी दूरदृष्टि भी थी, उन्होंने समुद्र के किनारे भगवान राम के साथ इनका वार्तालाप सुना था। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी शक्ति है और ये जम्मू कश्मीर में आई है। उन्होंने इसके पीछे भैरवनाथ को लगा दिया कि जाके पता करो कि ये कौन कन्या है, ये कौन सी शक्ति है, क्या हमारा जो है वो भक्ति जो था उसे तो नहीं भंग करने वाली है। तो उसी चक्कर में वो जो थी इनके पीछे सबसे पहले भूमि का जगह पे वहां गई और वहां जाके वो भी जैसे भंडारे में बाकी लोग बैठे थे वो भी बैठ गई और बैठ गए अपने भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ। और वहां उन्होंने कहा कि हमारे मन का भोज दीजिए। मतलब ये कि वो तो वैष्णवी थी, वहां कोई मांस मछली वगैरह का तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा हमें भी जो है हमारे मन का भोग जो है वो मांस और शराब दोनों हैं, ये हमें दीजिए। माता ने उससे इनकार किया। उसके बाद वो उसके पीछे लगे और जाते जाते कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बाण गंगा गए और माता ने वहां तीर मारकर वहां जल निकाला है और अपने केस जो थे वहां धोए। उसके बाद उस माता वैष्णो देवी चंद अपनी चरण पादुका वहां जो है एक स्थान आता है वहां खड़ी हुई है। आज भी वहां उनके चरणों के निशान जो है वो हैं दिखाई देते हैं। उसके बाद वो अर्धकुंवारी गई हैं। अर्धकुंवारी में 9 महीने उन्होंने वहां तपस्या की है और वहां भी गुफा जो थी, और कहते हैं कि वहां रखवाली के लिए हनुमान जी को रखा गया। उसके बाद माता वैष्णो देवी जाकर अपने स्थान जहां गुफा है वहां गई। वहां भी भैरव के पीछे लगा तो माता ने उसका वध किया है और उसका जो धड़ जो था वो गुफा के
उस नीचे जो भी आदमी जाता है पुरानी गुफा में, उसी से को क्रॉस करके जाता है, और सिर जो था भैरव घाटी पहुंचा है उसका उसी से, और उन्हें जो था वरदान दिया है कि आप अमर होगे, मेरे दर्शन जो हैं बाद में लोगों को होंगे, पहले तुम्हारे उसी के सफल होंगे मेरे दर्शन जो तुम्हारे भी दर्शन करेगा। ये माता वैष्णो देवी की ये जो है ब्रीफ हिस्ट्री जो थी, वो ये कथा वो दिखा जो ऐसा रिकॉर्ड में आता है वो हुआ है। माता वैष्णो देवी का नाम अगर आप ऋग्वेद में जाएं उसमें भी आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खासतौर स्थान जो है कटरा का, इसका द्वापर में जिक्र आता है कि अर्जुन ने वहां कुरुक्षेत्र में जब युद्ध की वो आरंभ हुआ था तो माता का ही उस वक्त स्मरण किया है, जिसमें उन्होंने खास तौर पर बोला है कि हे देवी, तू जम्मू के क्षेत्र में रहने वाली, कटरा में तेरा स्थान है, वहां तेरा बाग है, मैं तो तेरी आराधना करता हूँ, और हमें विजय का जो है वो हमें वरदान दो। ये खास तौर पर जो है उसमें दिखाया गया है महाभारत में। जहां तक नौ देवी का सवाल है, तो नौ देवी जो थी माता, इसका जो है ये नाम ये गिने जाते हैं, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, योग माया, रक्त दंतिका, शाकंभरी, श्री दुर्गा, ब्राह्मणी, चंडिका या चामुंडा, ये 9 रूप जो थे ये माता के गिने गए हैं। और ये 9 के 9 रूप हरियासी के पास 9 देवी स्थान है, वहां पर ये प्रकट हुए हैं, और आज भी उसको सारे लोग याद करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि भगवान राम ने उस वक्त बोला कि मैं काल युग में दोबारा जो है जन्म लूंगा, और कल का अवतार होने के बाद मैं आपसे विवाह करूंगा, और उसके लिए आपको स्थान बनाना है। कहते हैं कि देवी पिंडी उसी जगह का नाम है जहां पर उन्होंने अपना स्थान बनाया है, और कहते हैं कि कल युग में जब उनकी शादी होगी, माता वैष्णो देवी का स्थान गुफा से उठकर ये देवी पिंडी में होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना जो है ब्रीफ इसमें विवरण जो है देवी की उत्पत्ति का ये दूंगा, और इससे आगे और जो मौका मिला तो इससे डिटेल में जाकर हम वेदों में और इनकी व्याख्या कहाँ क्या हुई है, इसमें सतयुग में इनका क्या क्या योगदान रहा, द्वापर में कौन सा योगदान रहा। जैसा प्रोफेसर ललित जी ने बोला है कि कुंजा पीठे, वो कुंजा पीठे इसी देवी की जहां अंग उनके गिरे हैं वो गिने गए हैं, लेकिन ये माता वैष्णो देवी जहां साक्षात तीनों पिंडी रूप में, तीनों साक्षात जो हैं, ये सरस्वती, वैष्णवी और महाकाली, तीनों प्रमुख हमारे जो भगवान हैं उनकी जो पत्नियां हैं उन्हीं का रूप है, और संयुक्त ये जो है शक्ति रूपा हमारे जम्मू कश्मीर की एक मान वाली एक स्थान है। ये देवी हम लोगों की रक्षा करती है। आज तक जितने भी युद्ध हमारे हुए हैं, माता ने पूरे तरीके से जम्मू को पूरे तरीके से संभाला है। उम्मीद है कि आगे भी हमारी माता हमारी रक्षा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ा देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सुमेर जी, थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंटेशन। इनफैक्ट ये जो इतनी सारी चीजें जो ऐसे वी आर वर्किंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर अराउंड 14-15 years. I have been joined with our former head of the school, डॉक्टर ए के तिवारी एज वेल। तो हम लोग 14-15 साल से इस यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं, और हम बहुत बार वैष्णो देवी जाते हैं या देवी पिंडी भी गए हैं, कोल कंटोली भी गए हैं एंड ऑल। बट ये जो पूरी एसेंशियल हिस्ट्री थी जिस तरीके से सुमेर जी ने बताया, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट नोन टू अस, एटलीस्ट टू मी। एंड ये जो चीजें हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो एक पूरा का पूरा ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करके बताती है कि हाउ थिंग्स हैव हैपेंड एंड हाउ दिस इज गोइंग टू इवन इन फ्यूचर इट हैज बीन रिटन। जैसे सुमेर जी ने बोला कि देवी पिंडी में जो है उनका वो शिफ्ट हो जाएंगी, एंड दिस इज हाउ दैट प्लेस विल ग्रो अप एंड सो ऑन। ये जो
जिसको हम फोकलोर कहते हैं या जिसको हम सो कॉल्ड नैरेटिव्स कहते हैं, these are so important for all of us to understand as well as to know. तो थैंक यू सो मच सुमेर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो है अपना व्याख्यान भी दिया और साथ में आपने जो चीज़ों के बारे में अवगत कराया हमें, हम में से बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ के बारे में या इन चीज़ों के डिटेलिंग के बारे में जो है पता नहीं था. So thank you so much Sumer ji for the beautiful presentation. Manu ji, if you can hear me, can I request you to present before Shiv Padha ji, because Shiv Padha ji I guess so is disconnected. Yes, I can present. If you will allow me to share the screen, Sumanta ji, I will try to share my PPT. I am technically very challenged, Yes. so this is going to be a big feat for me. Successfully able to share my PPT. We all are very technically challenged, especially with people who are artificially intelligent, the so-called spams and the machines and all. Yes, Manuji, I have opened the sharing of the screen. You can share your screen with us. Great. So first, let me begin with sabko meri taraf se namaste, and thank you so much to SMVDU and the concerned department and Virendra Bangroo ji, Sumanta Sharma ji, and of course Nagendra Singh ji, who invited me to be a part of this webinar. Not just the topic is very important for me because it is a topic which is very close to my heart, but also the fact that SMVDU, I've been there once, and the first time I stepped onto the campus, the first thought in my head was, I wish I was a student here or a faculty or was somehow associated with the campus, because it is such a beautiful campus. You have you are in the shadows of the Trikuta mountains, the abode of Vaishno Mata. So at least virtually, I'm glad to be a part of a webinar organized by SMVDU. So thank you, everyone. And I have specifically chosen to talk about, because it's a great honor to be amongst such academic luminaries and people who are experts in their respective fields. I always learn from Lalit Gupta ji. I was in fact taking notes, and of course Sumer ji, he has he has spoken so exhaustively about the details of the folklore attached to Vaishno Mata. So my perspective is very different. I have, especially my talk is, has the underpinnings of the book that I have recently written, which should be out by the end of this year. And it is my way of looking at the Shakti in the Shivaliks, as I call them, because I'm an ethnic Dogra. I've grown up in a traditional Dogra household. I grew up amidst the iconography, which, Lalit ji was referring to. So I've seen those images around me. And this particular faith tradition comes organically to somebody who is from the Jammu region, someone like me from a typical Dogra household. But then later on, as you travel and you think more about this, there are the other aspects about the Shakti in the Shivaliks, which somehow fit into the contemporary discussions on not just faith, but also gender perspectives, etc. And that's how I have looked at it. And since I have had the opportunity to travel a lot and live in different Western communities and societies, it was very interesting for me to look at the Shakti shrines or the practice of worshipping Shakti in Jammu region, and somehow drawing a parallel between what is or how is gender looked upon in the Western society. So my first slide is, of course, the problematic aspect of how somebody from the West or somebody from the outside views us. So when they look at us, and these are certain labels or these are certain terms which you will see, especially in the coming decades, they will be questioned and challenged more. So I call this redefining the primitive, which means that what had happened initially was that when somebody, a Western scholar or a Westerner or somebody from a Western culture came in and looked at our faith traditions, they could not understand it, or they understood it at the very superficial level and decided that this was something which was primitive. So the word primitive, we've taken it on very innocently and naively in Bharat, in India, where we think primitive does not have a, it's just another word, but it is not. Primitive has a very derogatory meaning, which also, which in fact reflects the lack of understanding on the part of the
person looking at our faith traditions. And there are similar words which I would like to point out. You have, you have primitive, then you have something called exotic. Then there is also, if I may say so, even the word cult is used for describing a religion or describing a practice which the Western or the white man couldn't understand. So he said, Ki, this is something extreme. This is something which is unfamiliar. I don't know what this is. This looks, because the iconography can be very intimidating. You can have a Kali in her full avatar, in her Rodra Roop, and that can be very intimidating to someone from who's alien to our culture. So there comes, and hence, there is always, you will be seeing that there is a controversy of the images of our goddesses being misused or misrepresented or misappropriated. So hence, that is why it is very important to look at these folklores, at these Shakti shrines, at these at the iconography, and try to understand the relevance of it, and to think of how we can propagate it, promote it, and tell that this is what the philosophy is. It is much deeper, it is much beautiful, it is empowering. And for that, we will have to challenge these words like primitive and exotic, etc. And we'll have to redefine, and we'll have to find our own labels. So my second slide is actually a reference to how, and Lalit ji has said, and Sumer ji have, sort of given the antiquity and the historicity, the timeline of how it's the worship of the Shakta traditions, or the worship of the feminine divine is like, you can trace it back to the Rig Vedic period, and just compare it to the Western societies, which till 70s were still talking about, the women there were, it's a very right-based feminist movement where they were struggling for their rights to be visible and to have a voice. And if you compare it to our philosophy, call it Dharmic philosophy, Sanatani philosophy, Indic philosophy, whatever your choice of the word is, we already had a Durga Saptashati. We already had a Chandi part where we are talking about a Durga who is all powerful, who all the male gods have come together to create her because they couldn't slay Mahishasur. So they needed the feminine energy, the feminine power to defeat. So this is very different from the Western, what was happening in the West. Till the 1970s, you could not go into a university in the West to actually study the feminist philosophy. It was that late. Whereas when we are talking about Rig Veda, you can imagine how old and how entrenched this concept of the feminine divine, this supreme godhead of the feminine divine has always been with us. And of course, we are a culture which says Aham Brahmasmi, so there is a Durga in every woman, and you're being asked to look at women in that, with that lens. So coming to this, where I've said, and the little red thing that you see, I've actually used these, I've used them for my own social media handles to talk about my book. But this is what I've said in my book, and it applies here. And because my book is based completely on the Shakti shrines in Jammu region, that in Dharmic traditions, the very construct of power is feminine. She is Shakti. So when you think of power, you think of energy, you think of a feminine divine, supreme godhead. You think of Durga, Adi Shakti and all her manifestations. And this is what I'm hoping that, we have to sort of repackage and tell this story again, make these folklores popular again, and say that this is relevant even today. This is relevant for that young woman who's looking for a role model. This is relevant for someone who's trying to understand whether this philosophy was empowering or was it quaint and it's not important enough. And because this is Puranic genre, so there are people who would be questioning that this doesn't make sense without understanding what the genre Puranic really meant. It was symbolic. There is a lot of symbolism involved in it, and there is a messaging involved in it. So again, coming back to the Dharmic feminine, the way it looks at it, in this, there is no struggle, unlike the West, because in the Dharmic feminine, you have the masculine and the feminine. They are both equal and integrated. The images that you see here are from Rajouri, the Mangala Mata shrine. It's the entrance to it. I've used local shrines as much as I think I've used all the local shrines only for my images. Pictures, some have been taken by some of my friends or colleagues and good photographers, whom of course I've taken permission from. So this is an example of how masculine and feminine
are equal and integrated in our philosophy, and hence there is no struggle. I mean, both men and women are said and are sort of declared to be equal. And the most important and interesting thing is, and how it is different from the Western philosophy, that though they are equal, they don't need to be similar. So I do not have to be like a man to be powerful or equal. I can be I can be a woman. I can have all the womanly attributes, and I can still be very, very powerful. That is the concept, and that is the beauty of the Dharmic feminine, which is visible in all the Shakti shrines across Jammu region also. So that is the beauty. You can wear a pantsuit, you can wear a pant, and there is no problem with it. But if you think that you need to wear that to be powerful, then there is a problem with it. You don't have to do that. You don't have to be identical to be equal. The first image, it's a very popular image of this powerful looking Durga, and she's smiling, and I had taken this picture from my phone camera at Mahamaya temple. There was a painting outside. Very close to the steps it was kept, and I thought it was very empowering. And this is the beauty of it. We have Sumer ji who described the folklore. उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि क्या हुआ, कैसे ये वैष्णो देवी की कथा क्या है. He had described it so well. And when listening to that katha, when I was reading about it as a young girl also, and later at any stage of my life, the fact that there is a Vaishnavi who is being pursued by a Bhairanath, and she tells him not to follow her. She tells him to understand the concept of consent. Ki if I am saying no, it means no. She being pursued by him, she going up to the Trikuta mountains, still trying to disengage and, saying that, no, I don't want to have anything to do with you. And a Bhairanath who is not listening to her. And there comes a point where she turns around and strikes a blow. So, such a hard blow that his head rolls down to almost a kilometer. That to me, is such an empowering feminine icon, that this is a woman who's saying that my consent is important. This is a woman who's saying, okay, I'm giving you multiple chances to understand what I'm saying. And when he doesn't listen, she strikes that fatal blow. And of course, later forgives him also once he's repentant of his crime, of his faults. So this in itself, imagine telling this story to a young girl who's looking for icons, and she's not sure who to, you have the young women or young girls, teenagers looking at, I don't know how many of you have seen Wonder Woman, which is a Hollywood animated, there is an idea of a superhero, of a superwoman. You don't need that. All those feminine icons, which are very empowering, which are saying that she can be and is everything, are within us and around us, and in those Shakti shrines in Jammu region. She's the presiding deity and protector. How much more powerful can a woman be, the feminine divine be? In Jammu, if you look at all the folklores of all the Shakti shrines, she's the owner of all the forests and the hills. She is, those are the abodes of Shakti. They are hers, and we are the ones who are living here with her blessings. As we say very often, and as it is said that amongst communities, what is important, how and what they view, what their faith traditions are, reflects their thinking. It is a way of living, it's a way of thinking. Their way of worship reflects that. And we like probably in the Ganga belt, you have Jai Ram Ji Ki, then you have Jai Shri Krishna in Gujarat. And in the Jammu region, we address, or we sort of greet people with Jai Mata Di. So she's the queen and mother of this land. Now, this has a lot of meaning. When you look at Bawe Wali Mata, there are so many, you can call it urban legends, you can call it, again, lores. And I've heard it first-hand accounts, like most of the people of Jammu would have, from army veterans who actually believed that the Jammu city was protected when, we went to war with Pakistan in 65 and 71. There are stories about a little girl dressed in red. She's seen on a bridge, and the PF, Pakistani Air Force pilots, not being able to see the city, could not bomb. There's another version, because obviously these are lores, these are urban legends. There are many versions to these lores. There's another version where it is said that there's a little girl and she holds, she's taking these bombs on her lap.
the idea behind these laws is that there is an absolute faith that she is the protector. She is the protector of the city. She is the protector of the land. I have the image of Sukrala Mata here. And this story is also very important. And especially to people, to the young people who are very aware these days, are very concerned about the climate change, etc. You don't have to look at Greta Thunberg, and I have nothing against her, a great role model for many, but you really don't have to go that far. If you look at the folklore of Sukrala Mata, she also known as Mal Mata, the forests of Sukrala belong to her. The folklore itself says that she actually punishes. She, of course, punishes the two kings from Chamba, but she has also punished because one of the kings had the audacity to enter her forest, disturb the peace of her forest, kill her animals. So anyone wanting to, there's a budding animal activist or climate change activist, the story is right there. The story is around you. So if you're going to Sukrala Mata and if you listen to the story, the messaging is this, that this is hers. This belongs to this Prithvi is, you have that shlok in Sanskrit, Samudra Vasane Devi, Parvatastana Mandale, Vishnu Patni Namastubhyam, Padasparksham, Kshamaswami, which basically is saying that do not treat this earth as an entitlement. It is a gift to you and you treat it like that. This belongs to the divine and you treat it like that. You treat it with respect. And that's the Sukrala Mata story for you here, that she is the protector. She is the owner of the forests and the mountains. Again, I thought this was a very important picture. The picture on the left, I took it on my phone of the Trukata Hills, and the picture on the right is by Saurav Verma of the fort. She is within the fort. And when we think of a fort, we think of brave soldiers and we think of warriors, which is again a very important characteristic of our region. And yet within that fort, these very brave warriors turn to the Devi, asking her for strength and success. Another important aspect of Indic faith traditions is that divine that we worship. We believe that the divine is outside and the divine is within. And that relatability with the divine also comes because that divine is very identifiable. So here's a picture of Bawai Wali Mata, who personally to me is my greatest source of strength. She is so identifiable. Any Dogra woman, when she looks at Bawai Wali Mata, the first thing, like in this image, that you notice is that she's wearing a nat, she is wearing a mang tika, she's wearing the Dogri jhumkis, and she's actually wearing a nama set here around her neck. This is typical Dogra jewelry, which almost every Dogra woman on her marriage will get. It could vary in size and weight, etc., according to one's financial capacity. But this is something every Dogra woman owns. So when you actually go to Bawai Wali Mata, who is another manifestation of Adi Shakti in Mahakali, you see her and you immediately relate to her because she is someone who looks like any other local woman. So when we talk about identifiable, it means that you immediately feel as if I can talk to her. I know this person already. I know this divine mother already. She is just like me. So it creates a certain, the faith becomes stronger. It's more relatable. You can speak to her. At least I speak to her like she is my mother, of course, but it just makes it so much easier. So this is also a very beautiful aspect of our goddesses in Jammu region. Unifier. I mean, this is the Machael Mata shrine. Besides the fact that all our shrines are in such pristine, beautiful, natural, especially in the sense of nature, in such pristine locations, which would anyways the yatra or the trek for many would be, it would induce a sense of awe, the nature around when you take these treks, but also the fact that she's a great unifier. We've heard of the Machael Mata and we know that yes, General Zorawar Singh came here. He took her blessings before he went on to conquer Ladakh. But we also there is another story which says that even the Buddhists believe in her. They offered. They have a part in building of the shrine because there was a disease which had broken out in 1920s. And then there was this whole story that circulated that if you pray to Machael Mata,
then that illness is going to go away, that disease is going to go away, that outbreak that had happened. And they also participated in that. So you have, this is cutting across religions here, that even the Buddhists of the region are a part of that building of that Machael Mata shrine. So she's a great unifier as well. And the nurturer bit. The beauty of, again, Dharmic feminine is that there is a fluidity of roles. If there is a modern woman trying to find roles for herself, so there are so many. There is the consort, Parvati, there is Lakshmi, there is Saraswati, she imparts the knowledge. Then there are the more independent and fierce goddesses like Durga and Mahakali. And here I've said that the forms of the divine feminine represent different divine feminine qualities. So in the West, in the fifth wave of feminism, in the neo-feminism, they are now saying that, it is okay or empowering to be that female, be that woman, and yet be powerful. So they have come to that conclusion now in the fifth wave, which is also known as neo-feminism. But the Dharmic femininity was already viewing this, that the feminine attributes are anyways empowering. You don't need to change that. You do not need to become a masculine woman to be powerful. So here, of course, when I talk about this particular attribute of nurturer, this is the Pingala Mata shrine, the picture from there. And you must be aware, most of the panelists here might be aware, that Pingala Mata shrine has this stone pot and a stone spoon, a ladle of sorts in front of the shrine. And the story of the folklore is that the manifestation of Shakti in this particular mandir, in this particular Shakti shrine, she used to feed the children of the surrounding villages, of the Pingar village especially. She used to feed the children of the surrounding village. Again, that particular quality is being celebrated or is being, sort of highlighted in this story here in Pingala Mata shrine, that she is the nurturer, she is the nourisher, she is the provider. Now coming to what Laliti also touched upon, and I think this is very, very peculiar to the Jammu region, which is the deification of the extraordinary, the Kul Devi and the Dati worship that we commonly call it, which is basically what is happening here. It's just the amongst the ordinary, the extraordinary have been deified. She has been made into folk deities. Of course, there are a lot of folk male deities, but then we are looking at the folk female deities. So I think it is a credit to the local community, to the indigenous community, to the Dogra society, which has been able to identify that there is something extraordinary here, thanks to some extraordinary circumstances. We have seen something which is out of the ordinary. So we have either seen something which is, of course, in all the stories of the Dati, there is a supreme sacrifice involved. The Datis have performed sati, which to a Western lens or to somebody who does not understand the historicity or the times that these women lived in, they would be like, this is a little shocking. But this is what it is. The important part is that it reflects on the society, that they then went on to deify that deity. Does not mean that they are saying, okay, you can, because there are many of these datis are victims of social evils as well, of dowry or of some sort of mistreatment and misunderstanding. There are the suffering mothers, there are the grieving lovers. You have all these different stories for these dati. But what is important to understand, and I think a very important perspective to sort of promote, is the fact that the society has institutionalized that particular quality that these Kuldevi or Dati have shown. And then they have, there are fairs around these Datis, and there are males around these, you organize male around these Dati, where they're not saying that it's okay to misbehave or mistreat a woman and then you can just make her a goddess. No, I think in my perspective, it is more about this is what had happened and this should not have happened and it should not happen again. There is this angle to to that institutionalization of these datis as well. So of course, my image on the left is of Bua Kaudi, and the two images on the right are my own village deity, Sheelavanti Dati, as she's known as, and her story is of course of that of a grieving lover. A very interesting story. But besides the story, because of a lack of time, I'm not going into the details of the the different datis and the different stories. But
look at what the power she still has and what she does, why it is important. She is an instrument of change, and that is how these datis also must be looked at. We are doing a lot of mapping of the Shakti shrines. I think mapping of the dati should also be done, because whenever I have talked to people from who are not from Jammu, who are from the other parts of the country or even abroad, when I talk to Westerners, they find it fascinating that we have this practice of Kuldevi or folk deity worship. And I especially bring to light this fact that she's an instrument of change, and she also leads to a lot of community cohesion. The pictures that I've shared again from my village, and this is a meal that is organized at my dati. And I think the beauty of this is that she brings the clan together. She brings the clan together. There is a lot of sharing of food because, of course, the first harvest is brought to her. Everything that is shubh is first, you seek permission from her. So she even, in a way, supersedes the pan-Brahminical gods. The local deity, the folk deity is more important because she's closer to us. Again, this whole concept of she's identifiable. She's ours. She is from our village. Like my dati is from the neighboring village. She's from the Kalandriya clan of Rihal village. And my village is Bamnal in Jammu district. So she was in love with a boy from our village, and that's how she became our dati, because she sort of did sati once he died. So the community cohesion comes because she is bringing the clan together. That is the only time. Imagine in today's time when people have become isolated, societies are breaking, families and communities are fractured. Here is a dati who is still relevant, who's bringing the clan together. She's asking them to share resources. She's asking them to share food. She's asking them to inquire about each other. If someone is not doing so well, share resources with that family. So this is the power that she still wields over communities, and such a positive power. This is, of course, Lalitji, I think, mentioned Chichi Mata, and these are pictures from the temple itself, which I had taken again on my phone. And this, I think, these pictures are also very important because there is this idea that it is only the women who have performed sati. But the folklore of Chichi Mata is also very interesting because it is the father of this little child who dies by accidental drowning. He sits on the funeral pyre with his daughter, and he was a single father. The child had lost her mother at childbirth, and he sits on the fire and on the funeral pyre, and then he tells these villagers, he says that, tum dhyan nahi rakh paaye, I was busy. She wandered off, and she even asked, and she had wandered off looking for her father. And the story goes that there were a group of men who were sitting under the tree, and they were playing cards, typical of most villages. And she asks him, ki, have you seen my father? And they don't respond, or they're busy playing. And then she accidentally falls into the pond later on. And so he is angry, and he says, aap sabko dhyan rakhna chahiye tha. That African proverb of it takes a village to raise a child. He literally sort of exemplifies that when he tells the villagers that, why wasn't anyone paying attention? She met all of you while she was out looking for me, a little child. So he sits on the funeral pyre, and he also tells them before dying that you must revere her as a Kuldevi. And so many clans revere her as a Kuldevi. So I thought this was an important image to share because it was a man who is sitting on the funeral pyre, and it's not just women who perform sati. This is again from my village, and this is actually the Navratri celebrations, the Kaan Sakhya, which is again brings the community together, brings all the children together, irrespective of their caste and class and social standing. And unfortunately, these kind of celebrations are now limited to the rural areas of Jammu. I don't know how long they will continue if we do not make a conscious effort to keep them going. And we must keep them going, of course, because these Indic traditions, these local traditions are important, but also because they are empowering and they are very good for the community any which way. Yeah, so these are again some images from my village, and the first very powerful image is by a very good photographer from Jammu, Vikas. So I think this is what is reflected by these practices, by these Shakti shrines, by the practice of Kuldevi, that here is a society which is martial by nature, which has, these amazing wars the Dogra men have fought. And when you're looking at a status of a woman, you're asking these questions to yourself that, where is she? What was she doing? What were the spaces available to her? Did she have a say?
Was she important enough in a very martial society, and us Dogreyan, Akhneyan, Shane Karne, and we have fought these battles and we won them. So what was the woman doing? And then you realize that woman was holding the fort literally, because she was enjoying, or she had a very, very important position. And actually in my book, I also talk about a lot of women warriors and administrators and queens, which reflects this thought that yes, she is important, she has a say, she can equally have an opinion which is to be valued. There is this manifestation of Adi Shakti not just in young girls, and it is, you know, I had written about this some time back, where I had said that it is, I come from a city where randomly I'm at Raghunath Bazaar, and this happened with me. I was at Raghunath Bazaar with my daughter, my young daughter, and it was a Tuesday, and some random stranger came up to us. He touched my daughter's feet, offered her a prasad of halwa and kala chana, and he handed her like 10 rupees note, and he left. And I said, I have written about this, that this is the beauty of this region. And these practices, these Shakti shrines, the practice of Kul Devi or Dati worship is what has made this society, is what has shaped their views on women. And this is what needs to be told, because it is good to know the folklore, it is good to visit the temples, but if the messaging is lost, if the reason is lost, behind the ritual, then there is a danger of especially to the younger generation, of losing, they will think it's not relevant. This is not believable. So this needs to be retold in such a manner that it becomes relevant again, because it is empowering. If we watch a good movie, we tell our friends and relatives ki haan, bahut achhi picture hai, dekhiye. So when there is such a powerful philosophy, it must be shared widely. That is what my reasons were, or the underpinning of my book was, that I examine the dharmic femininity through this particular lens, and through these various Shakti shrines and these little dati, the mandirs devoted to these datis, and of course I've looked at women warriors also. So I will end here, and I'll just finish with this is my book. I'm just doing a pitch for my book, but this is my book, Mountain Goddesses: Finding Feminine Power from an Unexpected Place. It should be coming out by the end of this year, but it's all about these various shrines. So thank you very much for listening to me. It's a great honor to be amongst all of you, and I have only to learn from the other speakers, and I in fact seek their forgiveness if I have gone wrong anywhere. They are my elders and they know much more than me. So thank you. Namaste. Thank you so much, Manuji. In fact, the presentation was not only like it was like a journey into what we do not know, but it's also a journey like something which we should all know. And हम आसपास तो देखते हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बताया कि say कोई stranger है who comes and touches the feet of your daughter and also offers certain things, which in our culture is very, very normal. And I will say that neither I can agree to you more, nor I can thank you more for the kind of presentation which you gave. And basically the beginning of the presentation, where you said when a Westerner sees things like us, and when they call it like it is pristine, it is primitive, it is ancient, or it is just like a folklore, or all those words, the list of words which you told us, exotic in fact even is a derogatory terminology many a times, which usually people will not understand. And this is something which we encounter every day, or every time we meet people from the Western background. In fact, there is also a book, I just forgot the name of the author, but I will like to share it with you later, where an Indian, say by birth, I will say, but who is placed in the Europe or US, I guess so. He came and he studied, and then he gave us a very good understanding of how Westerners see, or the people from European background see these things, and they find it like something which is very, very primitive by nature, or very, very something which is not acceptable to them. And it is so easy for us to understand as well as to behave like one of us. So it was an amazing presentation, and we really thank you for taking out some time, and also to give such a beautiful presentation. The presentation is not only like it's an academic one, or it's a religious one, or it's a cultural
one or social one, but it's something which is more like connecting people, and it is easier for all of us to also understand these things and also to reflect upon and feel like that, yes, it is very, very identifiable. So thank you so much, Manuji, once again for your beautiful presentation. हाँ जी, हाँ जी. तो केवल कृष्ण जी, I request you to kindly come up for your presentation. आप अपना presentation दीजिए, अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं, यस, और आपका कैमरा भी ऑन है, तो प्लीज आप अपना presentation दे दीजिए. आपका presentation जो है वो है abodes of mother goddesses in किश्तवाड़ region. सर्वप्रथम मैं आप सभी महानुभावों का नम्रता पूर्वक सहृदय प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मुझे इसी वार्ता में शामिल करने के लिए धन्यवाद भी देता हूं। मुझे किश्तवाड़ के शक्तिपीठ के विषय में अपने विचार आपके साथ शेयर करने को कहा गया है। भारत में अन्य प्रांतों की भांति किश्तवाड़ में भी कई शक्तिपीठ प्रसिद्ध हैं। वैसे तो शक्ति की उपासना तो हमारी जीवन मीमांसा है। शक्ति की उपासना तो हमारे जीवन मीमांसा है। वास्तव में हम तो शक्ति के ही पुत्र हैं। हमारे पराक्रमी पूर्वज शक्ति के अनन्य उपासक रहे हैं। शिवाजी महाराज की इष्ट देवी तुलजा भवानी थी। महाराणा प्रताप की इष्ट देवता भगवान एक लिंग थे। वीरांगना दुर्गावती की इष्ट देवी भगवती चंडिका थी। इसी प्रकार किश्तवाड़ के राजा कीरत सिंह, महात्मा तुलसीगीर और वीरबाला कोकिला देवी की इष्ट देवी अष्टादश भुजा श्री सथल देवी रही हैं, जिसकी वरद कृपा और प्रेरणा से इस भूखंड की स्वतंत्रता, यहाँ का स्वाभिमान और सदस्वत्व जीवित रहा है। जितना गर्व हमें वीरत्व की मूर्ति महारानी दुर्गावती पर है, उतना ही गर्व किश्तवाड़ की वीरांगना कोकिला देवी पर भी है, जिसने छात्रु किश्तवाड़ की घाटी पर मुगलों की सेना का संहार कर वहां मुगल मजार बना दिया और किश्तवाड़ को आतताइयों के जुल्म से बचाकर यहाँ की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा की। अब मैं यहाँ की इष्ट देवी सरथल देवी के बारे में आपसे थोड़ा सा ज्ञान जो है वो शेयर करूँगा, जितना मुझे थोड़ी सी वाकफियत हुई है। तो ये स्थान जो है, ये सतह समुद्र से 60,000 फुट ऊंचे एक सरथल नाम के स्थान पर वाक़या है। यह माता का मंदिर एक शांत, निर्मल तथा शुद्ध वातावरण में स्थित है, जहां भगत जन संसार की भाग दौड़ से भागकर तथा घर गृहस्थी की चिंता को थोड़ी देर के लिए भुलाकर मां भगवती की श्री चरणों की पूजा अर्चना करते हैं। कई प्राचीन मंदिरों की भांति माता श्री सथल देवी की मूर्ति सबसे पहले कब, कहां और कैसे प्रकट में आई, यह कहना बहुत कठिन है। फिर भी किश्तवाड़ के एक माननीय विद्वान दिवंगत पंडित हरिलाल जोशी ने अपनी पुस्तक श्री सथल देवी दर्शनम में इस पवित्र मूर्ति का प्रादुर्भाव महर्षि श्रीपाल के समय का माना है। उक्त पुस्तक की रचना में लेखक महोदय ने पंडित संग्राम देव रचित राजवंश कीर्ति कौमुदी तथा पंडित प्रभाकर की राजवंश वली और अन्य गाथाओं से यथेष्ट सहायता ली है। इस माता भगवती की पवित्र मूर्ति की 18 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। महर्षि श्रीपाल को जब माता की कृपा से इस मूर्ति के दर्शन हुए, तो उन्होंने वर्तमान गालीगढ़ ग्राम के पूर्व में एक मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर में
सभी धार्मिक विधि विधान से इस पवित्र मूर्ति की स्थापना की। विक्रमी संवत 1170 में एक बार किश्तवाड़ के राजा अग्रदेव अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए कालीगढ़, वर्तमान गालीगढ़ नाम के दुर्गम वन को गया। वहां उन्होंने भगवती मां की कृपा से एक टूटे फूटे मंदिर में पवित्र मूर्ति को देखा। पवित्र मूर्ति को देखकर वे बहुत हर्षित हुआ और विधिवत पूजा की। तत्पश्चात थोड़ी दूर गांव में एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया और वहां मूर्ति की स्थापना करवाई। यहाँ के निवासी आज भी इस राजा के गुणगान का व्याख्यान कर, माता के किश्तवाड़ी भजनों में राजा का वर्णन किया करते हैं। अग्रदेवस जिसनोस बधाई, ये किश्तवाड़ी के वाक्य हैं। तथा इस गांव का नाम भी अग्रदेव के नाम पर अग्रालय रखा गया। विक्रमी संवत 1604 में जब हमलावर किश्तवाड़ पर हमला करने की साजिश रचा रहे थे, तो इस समाचार को सुनकर यहाँ के निवासियों को मंदिर की सुरक्षा के विषय में चिंता सताने लगी। एक दिन यहाँ के एक विद्वान ब्राह्मण को स्वप्न में मां भगवती के दर्शन हुए और कहा कि तुम मेरी इस मूर्ति को पीछे जंगल में छुपा दो, पुनः शुभ समय आने पर मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगी। अतः उस भगत ने प्रातः ये मूर्ति को मंदिर से उठाकर उसे अग्रालय गांव से थोड़ी ही दूरी पर छुपा दिया। ग्राम से थोड़ी दूरी पर उस भगत का एक छोटा सा प्राचीन मंदिर आज भी विद्यमान है। कुछ समय पश्चात एक सरल और निर्मल स्वभाव ग्वाले के द्वारा माता ने पुनः अपना प्राकट्य किया। देवी की मूर्ति को देखकर प्रसन्नता से युक्त वहां के सारे लोग माता का जय जयकार करने लगे और उन्होंने एक संदेश वाहक को किश्तवाड़ राजा महासिंह के पास भेजा। यह समाचार पाकर राजा अपने मंत्रियों के साथ अग्रालय गांव पहुंचा। राजा को देखकर ग्रामवासी सभी हर्षित हुए। उन्होंने राजा का स्वागत किया। राजा ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और वहां पवित्र मूर्ति की स्थापना करवाई। क्योंकि माता भगवती का प्रादुर्भाव साथ वाले वन के भूभाग में हुआ, अतः उस धर्मात्मा राजा ने मंदिर के निकटवर्ती सारे वन को भगवती के नाम पर समर्पित किया। इस वन को आज भी देवयून वन के नाम से जाना जाता है और वहां उस जंगल की लकड़ी को निकालना वर्जित माना जाता है और उसकी पूरी रखवाली की जाती है। विक्रम संवत 1724 में भाद्रपद की अमावस्या तिथि मंगलवार को राजा ने शास्त्र विधि अनुसार एक यज्ञ की आयोजन किया। उस दिन के से लेकर आज तक सरथल के लोग मघा नक्षत्री अमावस्या के दिन प्रत्येक वर्ष एक उत्सव मनाते हैं, जिसे आज जागुर के नाम से जाना जाता है। 1922 एडी में कई धर्मशालाओं के साथ मंदिर के भवन का पुनर्निर्माण महाराजा हरि सिंह ने करवाया। इस मंदिर का शुभ प्रवेश 4 अक्टूबर 1937 को हुआ। महाराजा ने मंदिर के कार्यभार को की जिम्मेदारी किश्तवाड़ के सनातनी हिंदुओं को सौंपी। वार्षिक यात्रा यहाँ हर साल एक बार मनाई जाती है। सरथल यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुद्धि अष्टमी और नवमी तिथि को आयोजित की जाती है। डोगरा राज्य में इस यात्रा का सारा प्रबंध सरकारी तौर पर किया जाता था, जिसके कारण इस यात्रा को सरकारी यात्रा भी कहा जाता है। वर्तमान में इस यात्रा का आयोजन श्री सरथल देवी जी प्रबंधक समिति करती है। यात्रा सरकूट मंदिर से निकलकर
अपने गंतव्य की ओर माता के भजनों और जय घोष के साथ आगे बढ़ती जाती है। यदि इजाजत हो तो मैं पाडर मचेल में स्थित चंडी माता का भी वर्णन करूं। जी जी समय थोड़ा आगे जी जी हाँ आप बोलिए। मेरा गला कुछ खराब है आज। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए, प्लीज बोलिए सर। पाडर में माता चंडी के प्रति लोगों में जो श्रद्धा है, उससे लगता है कि इस भूभाग में माता का अच्छा प्रभाव रहा है। मचेल में शक्ति का यह मंदिर पथ और गर्भगृह योजना पर आधारित है। यह एक लकड़ी का प्राचीन मंदिर है। छत ढलानों से चादरों से ढंपा हुआ है। इसका मुख्य भाग आकर्षक और कलात्मक है। दक्षिण की ओर इस मंदिर के साथ पौराणिक एवं नाग देवी देवताओं की कई मूर्तियां लकड़ी पर चित्रित की गई हैं। मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है। इसकी भीतर माता चंडी एक पिंडी के रूप में प्रतिष्ठित है। इस पिंडी के साथ ही धातु से बनी देवी की मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें एक मूर्ति चांदी की है। कहा जाता है कि चांदी की ये मूर्ति जंस्कार से लाई गई है। कला की दृष्टि से जम्मू कश्मीर राज्य में उपलब्ध धातु मूर्तियों में ये सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। मूर्ति में देवी का जो अलंकरण पहनाए गए हैं वे स्वयं एवं हिलने लगते हैं। श्रद्धालु भक्त इसे देवी का दर्शन मानकर मूर्ति के सन्मुख नतमस्तक होते हैं। कहा जाता है कि प्रसिद्ध सेनापति जोरावर सिंह और वजीर लखपत और मेहता बस्ती राम जैसे कुशल सेना नायक विजय अभियान में भाग लेते हुए इस शक्तिपीठ पर दर्शन के लिए आए थे और यहाँ विजय पाने के लिए मनौती भी मांगी थी। अतः जब वो अपने अभियान में सफल होकर लौटे तो उन्होंने वहां के एक यज्ञ का आयोजन ही किया। न केवल वहां एक यज्ञ का आयोजन ही किया अपितु इस शक्तिपीठ में एक मूर्ति भी संस्थापित की। मचेल यात्रा 1981 में भद्रवाह के देवी भगत ठाकुर कुलवीर सिंह ने शुरू की, जो वहां पाडर में उन दिनों पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। उन्हें वहां माता के चमत्कार के दर्शन हुए तो उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया। तब से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगत यहाँ प्रति वर्ष यात्रा करने आते हैं। मचेल यात्रा भाद्रपद संक्रांति से 5 दिन पूर्व भद्रवाह के निकट स्थित चिनोत गांव से आरंभ होती है। किश्तवाड़ में रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन अठोली पाडर में रुकती है। तीसरे दिन यात्री दुर्गम पहाड़ी मार्गों से पैदल सफर करके मसू गांव पहुंचकर विश्राम करते हैं। रात भर यात्री जयकारे लगाते भजन कीर्तन करते रहते हैं। मार्ग में स्थान स्थान पर श्रद्धालु दानी भक्तों की ओर से लंगर लगाए जाते हैं और जलपान की व्यवस्था सुयोग्य ढंग से की जाती है। वर्तमान स्थिति को देखकर यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध होते हैं। चिकित्सकों की एक टीम और एम्बुलेंस भी वहां उपलब्ध कराई जाती है। यह यात्रा देव दर्शन के सच्चे आनंद के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति भी कराती है। धन्यवाद। मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस समय यहाँ उपस्थित होकर बोलने का मुझे समय दिया। विशेषकर डॉक्टर ललित गुप्ता जी को, जिनके दर्शन मुझे यहाँ मेरे घर में भी एक बार हुए थे, और फिर एस शर्मा साहब का और वीरेंद्र भांगरू जी का, मनु जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि समय मिला तो माता चिची माता
ये शीतला माता वगैरह वगैरह कई और भी शक्तिपीठ है जिनके बारे में मैं कुछ अपना ज्ञान आपसे शेयर कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से वर्णन किया या जिस तरीके से पूरी उसकी हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी को बताया, आई गेस सो कि हमें से बहुत सारे लोग, स्पेशली मी, तो जानते भी नहीं होंगे। और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र और हमारे आसपास के जो कल्ट्स हैं, या जो जिसे हमें कहना चाहिए जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनको समझें, या उनको अगर थोड़ा सा, क्योंकि हम अपने विरासत को भूलते जा रहे हैं, और अगर हम उसको थोड़ा सा जानें और उसको समझें, तो जैसे मुझे मनु जी की बात भी याद है कि बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं या वेस्टर्न आइडियाज हैं, या से फॉर दैट मैटर चाहे वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग हो जिसको कि हम सुपरमैन, सुपर वुमन या कोई भी सुपर कैरेक्टर मानते हैं, या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के डेट में जिनको कि हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही हिस्ट्री में आके देखें या अपने ही कल्चर में आके देखें, तो वो सारी चीजें विद्यमान हैं, और वो सारी चीजों के कारण ही हमारा इस तरीके का निर्माण भी है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप्ड है। और इस चीज को बहुत आसान है समझना, लेकिन क्योंकि हम अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में या हमारे चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, या उनसे थोड़ा सा अब कट चुके हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, इसके कारण से ये दिक्कतें आती हैं। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं आशा करता हूं कि इसके बाद भी जब हम इस टॉपिक पे वेबिनार या फिर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आपका आशीर्वाद भी मिलेगा, और आप जो हैं हमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ या ऐसी चीज़ों के से हमें अवगत कराएंगे। स्वरण सिंह जी, स्वरण सिंह जी, कैन यू हियर मी? आई गेस सो नीलम सरीन जी इज ऑल्सो नॉट विथ अस राइट नाउ। नीलम सरीन जी मेरे ख्याल से नहीं है, स्वरण सिंह जी हैं। स्वरण सिंह जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। और स्वरण सिंह जी का जो आज प्रेजेंटेशन है वो डुग्गर लोक गाथाओं में शक्ति उपासना का उल्लेख के बारे में आज बात करेंगे। तो स्वरण सिंह जी, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रेजेंट। नमस्कार, जय माता दी सभी को। तो सर्वप्रथम मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अंक में आप सभी का, पूरी जो आपकी टीम है उसका धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी, शर्मा साहब, आप खुद, नगेंद्र सिंह जी, आपकी पूरी टीम, कि आपने मुझे ये बोलने का समय दिया। तो मैं यहाँ डुग्गर प्रदेश में पूजने वाली जो शक्ति स्वरूप देवियां हैं, इनका संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में वेद पुराणों ने भी पूरा नहीं किया, लेकिन प्रयास करूंगा कि मेरे इस डुग्गर प्रदेश में कहाँ कहाँ ये स्थान है जहाँ इन देवियों की पूजा की जाती है, और थोड़ा सा ये भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह इनकी उपासना यहाँ की जाती है। तो सबसे पहले तो ये माँ भगवती के भिन्न स्वरूप, चाहे ये कहा जाता है कि ये बहनें हैं सभी, जो जिनका यहाँ मैं थोड़ा सा व्याख्यान करूंगा। तो लेकिन मैं ये, मेरे विचार में तो ये माँ भगवती के अंश हैं, जिनका पूरे विश्व में जो है वो भिन्न भिन्न नामों से पूजा की जाती है। तो हमारे डुग्गर प्रदेश में जिन माता शक्ति स्वरूपनी माँ की जो होती है, इनमें चंडी, जो उसको चामुंडा भी बोलते हैं, चंडी रानी, और हमारे डोगरी में इसको चौड़ माता के नाम से बोला जाता है। जे इनका जो स्थान है, इनका जो थान, छोटे छोटे मंदिर घर के अंदर तकरीबन हर घर में, ये डुग्गर प्रदेश है, पंचारी से लेकर मैं ये बसंतगढ़ या इधर लेकर चलूं बसोली या बिलावर के पहाड़ी क्षेत्र में खासकर मैं लेकर चलूं, तो जगह जगह घर घर में इनके थान, इनको डोगरी में बोलते हैं कि थान है, तो ये मिल जाता है। चाहे वो त्रिशूल रूप में है, तो ये घर घर में इनके स्थान मिल जाते हैं और घर घर में इनकी पूजा की जाती है। उसके साथ साथ कालका माता, जिनको महाकाली का रूप है, शीतला माता भी कहते हैं, मल माता, ये
इनके जो उपासना है इस पूरे क्षेत्र में बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से जो है वो की जाती है। इनमें इनके जो यहाँ के प्रमुख जो मंदिर हैं उनका मैं थोड़ा सा व्याख्यान करूंगा। हमारे क्षेत्र में चौड़ माता जी का पहले जो प्रमुख स्थान मैं बताऊंगा। इनमें नुकनारी वाली मंदिर माता है, दौला माता है, और फिर ब्याना चाऊ जो काफी, फिर टोप जो बसंतगढ़ में है प्रॉपर, फिर खंडारा ये एक पर्वत की चोटी पे है, पट्टियां, गुतोलू, ये यहाँ के प्रमुख। ये प्रमुख मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा व्याख्या करूंगा कि ये जो स्थान मैंने बोले, यहाँ पर जो लोगों के घरों से, जिनके घर में ये थान होते हैं चौड़ माता के, वहां से छड़ियां जो हैं वो खासकर नवरात्रों में या नवरात्रों के बाद या नवरात्रों से पहले ये छड़ियां जो हैं वो इन क्षेत्रों में एक समझो ढोल, बाजा, बांसुरी, नरसिंगा उसको लेकर ये लोग छड़ी के रूप में बजाते हैं और वहां उसकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ एक मैं और बात बोलूं कि जहाँ जो माता जो बांसुरी या ढोल वगैरह, ढोलक वगैरह लेकर जाते हैं, इनका एक मखसूस एक विशेष राग होता है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं उन कलाकारों को जो जिन्होंने इस प्राचीन राग जो थे, माता के राग इनको बोलता कि चौड़ माता राग लाओ भाई, वो राग जो है अभी संजो कर रखी हैं, और हमें मौका मिलेगा तो उन कलाकारों को लेकर ये हम इसका व्याख्यान करेंगे। यहाँ एक बात से मैं खुद अपने आप को बोल दूं, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन यहाँ रीति है कि चौड़ माता के बकरा और भेड़ू की बलि दी जाती है। तो वहां जाकर ये लोग अपनी वो कोई मन्नत है उसको मानकर जो कैसे भी जाते हैं, तो ये वहां जाकर उसकी बलि देकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और वहां जो चेले होते हैं, द्वाले, ठीक है, वो जो पुजारी वो वहां नाचते हैं उस ढोल की थाप पर जो उसका खास राग होता है। उसके बाद दूसरा मैं यहाँ बोलूं कि ये जो बसंतगढ़ का मैंने उल्लेख किया कि यहाँ टोप जो है वो एक शिव गली एरिया है, वहाँ ऊंची जगह पे एक बड़ा भव्य और खूबसूरत मंदिर बना है टोप वाला। तो या ब्याना चऊ है, ये भी बड़ी ऊंची जगह पर बना है। खंडारा काफी ऊंची, यहाँ गुदोलू काफी रामनगर के पास है, बिल्कुल काफी ऊंची जगह पर है। यहाँ यात्रा लगने के साथ साथ मेले लगते हैं, माता के मेले लगते हैं, और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर यहाँ कुड नाच किया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ में मेलों के साथ साथ यहाँ टोप में 15/8 जे विक्रमी को बड़ा मेला लगता है, और भद्रवाह से मेन छड़ी जो है वो यहाँ बसंतगढ़ आती है। एक दिन यहाँ बसंतगढ़ के जहाँ उसका मुख्य स्थान है वहां रुककर दूसरे दिन टोप में बाकायदा मेला लगता है। दूसरी यहाँ इस एरिया की जो प्रमुख माँ शक्ति है वो है शीतला माता। तो शीतला माता का भी स्थान जो है वो जगह जगह पे बना हुआ है। लोग उसको इस रूप से भी पूछते हैं कि भाई किसी को कोई खासकर में कोई चमड़ी का रोग हो जाए, तो कुछ हो जाए, तो वहां इसकी पूजा अर्चना की जाती है कि वो, और कहते हैं कि लोग उससे ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ इसके जो है प्रमुख स्थान में थोड़े आपको बता देता हूँ। बसंतगढ़ इस क्षेत्र में, तो बसंतगढ़ में खासकर एक त्रोबड़ नाम की जगह है, वहां 5वें नवरात्रे को रात को मेला लगता है, दिन को नहीं रात को। शाम तक जो यात्रु है या छड़ियां हैं भिन्न भिन्न एरिए से, जे बसंतगढ़, रामनगर या इस बिलावर के एरिए से, या ये छड़ियां जो हैं वो शाम को जहाँ पहुंचती हैं, और रात को पूरी रात यहाँ मेला लगता है। बाकायदा कुड डांस होता है माता का, वो चेले द्वाले जो हैं वो करते हैं बांसुरी ढोल थाप पे, या उसका भी विशेष जो राग है विशेष वो बांसुरी पे गाया जाता है, और विशेष ढोल की थाप वहां दी जाती है। तो ऐसे ही डुड्डू के क्षेत्र में वहां एक पटली नाम की जगह है, काफी मशहूर, वहां शीतला माता का बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर है। वहां भी नवरात्रों में और पूरे 9 नवरात्रे वहां पूजा अर्चना की जाती है।
उसके साथ ही डुड्डू में ही एक जखेड़ में एक बड़ा इसका मंदिर है। इसका हम कहते हैं कि जो शीतला माता का जो बेसिक स्थान है वो शुरू हिसार है, वो भद्रवाह में है। तो लोग बसंतगढ़ के एरिए से या रामनगर के एरिए से, मैं कहूँ बिलावर के एरिए से कहूँ, भद्रवाह के एरिए से कहूँ, यहाँ के लोग जो हैं वो छड़ी लेकर वहाँ शुरू हिसार जाते हैं। तो इसका विज्ञान जो है वो काफी पुराणों वगैरह में भी किया गया है, हमारे शास्त्र में किया गया है। वहाँ उसकी पूजा की जाती है शीतला माता की। उसके साथ ही यहाँ बसंतगढ़ के एरिए में, चूंकि बसंतगढ़ यहाँ किले हैं, तो यहाँ कालका माता या माता महाकाली उसका भी मंदिर है, काफी मशहूर मंदिर है। बसंतगढ़ जो किले हैं, किलों के साथ एक बड़ा मंदिर है। तो उसके साथ ही डुड्डू में इसका एक मंदिर है, उसका नाम ठिरडू है, ठिरडू नाम की जगह है। यहाँ कालका माता का मंदिर है। जैसे इतना बड़ा भव्य मंदिर जितना मैं कहूँ कि जम्मू में है, इतना बड़ा मंदिर तो नहीं, लेकिन फिर भी छोटा मंदिर है। लेकिन आसपास के लोगों में उस मंदिर की, या यहाँ बसंतगढ़ में मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। साथ ही एक वो मैंने पीछे भी नाम बोला कि खंडारा, खंडारा में भी एक लोगों ने कालिका माता का भव्य मंदिर जो है वो बनाकर रखा है। क्योंकि शक्ति पीठ है तो राजा महाराजा इसकी पूजा करते थे, तो इसको किलों के साथ जोड़कर वो रखा जाता है कि किलों की वो रक्षा करती है, जैसे है, जैसे पीछे व्याख्या की गई है। इसके साथ ही एक और देवी का यहाँ पूरे इस क्षेत्र में उपासना की जाती है, वो है मल माता। तो मल माता जो है वो बच्चों की खासकर कोई जिसे कहते हैं कि केस जो है वो उतारने हैं, या बच्चों की वो करते हैं भाई हमारे घर बच्चा पैदा हो, तो ये इसमें मिष्ठान वगैरह वो वहाँ चलाया जाता है। इसमें कोई वो बलि वगैरह का नहीं है, लेकिन मिष्ठान अच्छे अच्छे मिठाइयाँ जो है वो वहाँ वो चढ़ाई जाती हैं, जिसमें मैं बोलूँ बबरू या क्यूर जे डोगरी में। तो ये उस माता के चढ़ाते हैं। और इसका मुख्य स्थान जो है वो बिलावर के पास सुगराला माता जो है वो मल माता ही है, तो वो किया जाता है। तो चूंकि जगह जगह हर घर में, हर तीसरे दूसरे घर में तो जे मल माता, जे चौड़ माता, जे शीतला माता, इनके थान जो हैं वो जगह जगह है, घर घर में है। तो नवरात्रों में खासकर हर इस क्षेत्र में, हर एरिया में, हर घर में आप ढोलों की थाप सुन सकते हैं, भजन कीर्तन सुन सकते हैं। तो ये एरिया जो है इन माता की शक्ति से, इस एरिया में हम कहते हैं कि भाई ये देवस्थान है, पहाड़ी एरिया है, तो इसमें इनकी पूजा की जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। सभी का धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वरण सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। और रियली मतलब हम आपको इसके पहले भी होस्ट कर चुके हैं, और हम सारे ही लोग जो हैं अब डुग्गर कल्चर, या जिसे कहते हैं कि यहाँ के जो कल्ट्स हैं, या यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, यहाँ के जो कल्चर्स हैं, या यहाँ के जो खान पान है, इन सारी चीज़ों के साथ और ज़्यादा अवगत होते जा रहे हैं। और आपने जो है हमेशा ही हमारा साथ भी दिया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर ब्यूटीफुल एज वेल एज वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के हम जब इस सेमिनार को इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में लेके जाएं, तो आपको फिर से होस्ट करें, और जो है आपसे और भी इन विषयों में ज़्यादा जानकारी ले। तो थैंक यू सो मच अगेन स्वरण सिंह जी। मैं आपको इनवाइट करता हूं आपके प्रेजेंटेशन के लिए, जो आपने हमें टॉपिक दिया था, दैट इज जम्मू के प्राचीन शक्ति स्थल एवं उनसे जुड़े जो पर्व और त्योहार हैं, उनके बारे में आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो नीलम जी, इट्स ऑल अप टू यू नाउ। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है ना? जी जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं शक्ति स्थल की बात करूंगी जम्मू के। तो जैसे हमारे लोकगीत भी है ना, बोलन जयकारा माता गढ़ जमुआ की आई, पहला दर्शन कोर कंडोली दुआ देवा माई, आगे वो बहुत सारे लंबे लंबे बोलते हैं। हमारे जम्मू प्रदेश में, डुग्गर प्रदेश में माँ शक्ति का गुणगान
अनेक लोक गीतों, भजनों, बेटों द्वारा सदियों से होता चला आ रहा है। शक्ति के हर रूप की पूजा जहाँ की जाती है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमें बहुत सारे डोगरी भजनों, लोकगीतों और कारकों में मिलते हैं। जैसे जिनको गाड़ी और जोगी गाते हैं। जैसे एक लंबी कारक है, सारे बागे कालका बैठी है, कोल मां माया देवी दा भौन जी, साढ़े सुकराला मल देवी बैठी है, अध कुवारी ने मल्ली है धार जी, माता वैष्णो दे किंगरे लभदे जी बैठी है गुफा च जा जी, तेरे चली चली संगतां आउंदियां भगता बोलन जय जयकार जी, साढ़े अंबिका चंडिका गी पूजदे, चोड़ा देवी गी लैन मना जी, साढ़े पज्जर काली गी पूजदे, महालक्ष्मी लैन मना जी, बिच गुफा दे वैष्णो बैठी, कोल बुआ बावे दा घर जी। इस तरह की लंबी लंबियां और इस तरह बहुत लंबा और लोक भजन है जिसमें शक्ति के नामों और स्थानों का जिक्र मिलता है। मैं सिर्फ जम्मू शहर के प्राचीन शक्ति स्थलों की बात करूंगी, उस पुराने शहर की जो पांचतीर्थी से लेकर घुमट तक होता था पुराना शहर, और घुमट में उसका गेट होता था। उस प्राचीन और उन खास तौर पर उन प्राचीन शक्ति स्थलों की जिन मंदिरों में माता पिंडी रूप में विराजमान है। जैसे इनके नाम इस तरह है: माँ चिंतपूर्णी, माँ जालफा का मंदिर, प्राचीन परमेश्वरी मंदिर, शीतला माता, माता भद्रकाली माता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मंदिरों को महाराजा गुलाब सिंह ने दोबारा से बनवाया। और पहले तो छोटे छोटे मंदिर थे, कच्चे मंदिर थे, तो उसके बाद इनको महाराजा गुलाब सिंह जब आए तो उन्होंने सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, वहां पर पुजारी को नियुक्त किया। सबसे पहले चिंतपूर्णी, जो जम्मू शहर का हर मंदिर बहुत बड़ा और सुंदर है, आकर्षक है, परंतु शहर के उत्तरी भाग में तवी नदी के दाएं किनारे पर सर्कल रोड से कुछ मीटर की दूरी पर बड़े माँ चिंतपूर्णी के मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। जम्मू शहर की माँ चिंतपूर्णी का शायद यही एकमात्र मंदिर है जो छोटी सी पहाड़ी पर बना है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने किया, इसका ठोस ऐतिहासिक या लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता। महाराजा गुलाब सिंह के शासन काल में फिर से इसका निर्माण किया गया। यह प्राचीन मंदिर पहले बहुत छोटा था और चारों ओर बेयाबान जंगल होने के कारण डर के कारण बहुत कम लोगों का जहां आना जाना था। मंदिर में चतुर्भुजी माँ चिंतपूर्णी जी एक चौकी पर विराजमान है, जिसके दाएं बाएं शेर की मूर्तियां तथा सामने 3 पिंडियां हैं। माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में माला, चौथे हाथ में पोथी है। दीवारों को रंग बिरंगे शीशों और रोशनियों से सजाया गया है। माता की मूर्ति मुकुट और सुंदर वस्त्रों से सजी है। यूं तो मंदिर में सभी धार्मिक पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें जम्मू शहर के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, परंतु 23 अगस्त को जहां पर माँ चिंतपूर्णी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, 29 अगस्त को बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है और माता को 36 पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इस अवसर पर हवन यज्ञ तथा कन्या पूजन भी किया जाता है। माता जालफा का मंदिर जो है वो जब हम चौक चबूतरा से राजे की मंडी से होते हुए जाएंगे तो वहां पर एक बस्ती है जो कि चीर बिलादरी की बस्ती है, और वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। मेरे ख्याल में जो लोग जम्मू में रहते हैं उन्होंने सुना होगा कि हमारे जहाँ जागरण होता था, सारी रात का जागरण, तो उस जागरण में चीर बिलादरी के लोग ही माता तारावती की कथा सुनाते थे, और वो सारी 12 बजे उसकी जोत जलती थी और फिर कथा के साथ साथ भजन बोलते थे और फिर सुबह तक उसका चलता था। और तारा रानी की कथा भी सामने थोड़ी बहुत, उसके साथ बहुत सारी तारा रानी की कथा ही जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कि तारा रानी जो है वो माता को बहुत बड़ी भगत थी, और वो छोटे लोग सब जहाँ भी जगराता होता था वहां जाती थी, और राजा को इस पे शक होता था कि ये वहां पर छोटे लोगों के घरों में हलवा और चने का प्रसाद तो होता ही था जगराते में, जागरण जो सारी रात का होता था, तो उसमें वो कहते थे कि वहां वो प्रसाद नहीं ग्रहण करना,
तो एक बार राजा पीछे पीछे रानी के चले गए, तो उन्होंने देखा कि रानी ने जब हलवे का भोग लगा तो उसने सबसे पहले रानी को भोग दिया, हलवा और चने का। तो राजा को था कि मैं प्रत्यक्ष इसको सामने से पकड़ूंगा। तो जब वो देखा प्रसाद, तो वो प्रसाद हुआ वो हलवा की जगह उसको उन्हें छुआरे ड्राई फ्रूट्स नजर आया। तो इस तरह बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी कहानियां हैं जो कि चीफ जाति के लोग जम्मू में भी करते थे और शायद उत्तर भारत में सभी जगह करते होंगे। कहते हैं कि माता जालफा का मंदिर वहां पिंडी रूप में स्थापित है। पंचतीर्थी में ही समझ लीजिए वो मंदिर है और पिंडी रूप में स्थापित है वो मंदिर। और मेरे ख्याल में उस मंदिर में चीर जाति के लोग ही उसकी देखरेख करते हैं। और यहाँ भी चाहे वो आजादी से पहले, चाहे वो लाहौर हो गया, पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी तारा रानी का जागरण होता था वो प्रसाद यही इसी मंदिर में आकर चढ़ाया जाता था। और ये मंदिर कब से है ये तो शायद अभी तक हमने इसका शोध का विषय है कि कब से बना, कब, यहाँ इसका जो दोबारा से बनाया गया वो महाराजा गुलाब सिंह ने इसको मंदिर को बनाया था। तो दूसरा मंदिर है, मंदिर कहते हैं जम्मू शहर में कुछ डक्कियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें पक्की डक्की, डक्की पीर मिठा, डक्की सराजा, डक्की मस्तगढ़, डक्की दलपतिया के नाम अभी लोगों की जुबान पर है। परंतु एक डक्की ऐसी भी है जो सबसे पुरानी है और जिसका नाम लोग शायद भूल चुके हैं। उस डक्की का नाम है परमेश्वरी डक्की। ये डक्की पीर खो शिव मंदिर जाने वाले मार्ग में स्थित है, जहां मस्तगढ़, पीर मिठा, दलपतिया तथा टक्की सराजा का मिलाप होता है। ये सभी डक्कियां तवी नदी के दाएं किनारे की ओर ही हैं। परमेश्वरी टक्की पर बने 3 प्राचीन मंदिर आज भी इस टक्की की याद दिलाते हैं। पीर खो जाने वाले रास्ते की बाईं ओर 9 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक छोटी सी पगडंडी इन मंदिरों की ओर जाती है। 40-50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर शीतला माता की पिंडी विराजमान है, जिस उसके सामने एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, जिसमें दूध और जल का पवित्र मिश्रण, जिसको दलस्सी कहते हैं, जिसके प्रयोग से समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने तथा श्रद्धा पूर्वक गुणगान करने से भक्तों को संतान के सुख की प्राप्ति होती है और सब और कष्ट दूर होते हैं। ये शीतला माता का मंदिर है, जहाँ शीतला माता भी पिंडी रूप में विराजमान है। और ये आज तो ये पूरा घना मोहल्ला है, तो उसके बीच में ये मंदिर आ गया है। और जब महाराजा गुलाब सिंह ने इस मंदिर को बनाया तो उसका गेट बाहर वैसा ही अभी भी मौजूद है, पर मंदिर छोटा बचा हुआ है। और माता हमारे यहाँ जब भैया रोटियां कहते हैं, भैया रोटी की पूजन वहां लोग करने जाते हैं। और इस मंदिर में आज भी उनकी ही मान्यता है और उस मंदिर की पूजा होती है। तीसरा मंदिर है चिंतपूर्णी। शीतला माता के मंदिर के साथ ही परमेश्वरी मंदिर है, जिसमें भी माँ शक्ति की सफेद संगमरमर की 4 भुजाओं वाली सुंदर मूर्ति स्थापित है। दाईं और ऊपर वाले हाथ में एक भारी गदा और निचले हाथ में गोल आकार का खप्पर है। इस प्रकार ऊपर वाले बाएं हाथ में एक गदा और नीचे हाथ में एक त्रिशूल भी है। सिर पर सुंदर मुकुट है। पहले श्रद्धालु माता की मूर्ति पर जल छिड़कते थे, जिससे मूर्ति की सुंदरता खराब होती थी। इसलिए माता की पिंडी को नीचे स्थापित किया गया, ताकि जिन श्रद्धालुओं को धूप दीप जलाना हो, फल फूल चढ़ाने हो या जल चढ़ाना हो, वह पिंडी पर चढ़ा सके। पिंडी के साथ ही शिवलिंग की स्थापना की गई है। इस मंदिर में माता वैष्णो देवी की मूर्ति और नाग देवता का प्राचीन मोहरा भी है। और इस मंदिर को भी बाद में महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया था। परमेश्वरी मंदिर के बारे में प्राचीन कथा भी, बहुत सारी प्राचीन कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिसका उल्लेख तारीख डोगरा देश में किया गया है। कथा के अनुसार 1000 साल पहले राजा ब्रजदर जम्मू में राज करते थे। उनकी रानी का नाम परमेश्वरी था और उसके साथ बहुत लंबी कहानी जुड़ी है, जो कि अब मैं इस समय यहाँ पर नहीं सुनाने वाली। परमेश्वरी मंदिर के साथ ही तीसरा मंदिर है माता भद्रकाली का। माता वैष्णो देवी के 3 रूप हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। और इस मंदिर में के शाकर जी ने अपनी किताब में इस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। के शाकर जी लिखते हैं कि माता काली के श्रद्धालु कई नामों से माता की पूजा करते हैं, जिनमें भद्रकाली, श्याम काली, गोहा काली तथा रक्षा काली आदि प्रसिद्ध हैं। ये 3 नील कमल की भांति श्याम है। इस मंदिर में स्थापित माँ भद्रकाली का श्याम रंग, 4 हाथ, गले में मुंड माला,
तथा चोला व्यग्र के चरम का है। माँ भद्रकाली के दांत लंबे, जीवा चंचल, लाल आंखें, कान चौड़े तथा मुंह खुला हुआ है। माँ चामुंडा ने असुरों के साथ होने वाले युद्ध में चंडमुंड नाम के 2 महाअसुरों का संहार किया था। इसीलिए काली माता को चामुंडा माता के नाम से भी याद किया जाता है। माँ भद्रकाली संहार की देवी है और दुष्टों का नाश करके भक्तों को सुख प्रदान करने वाली है, भक्तों की रक्षा करती है। माता की मूर्ति साक्षात वीरता, साहस, ऐश्वर्य, रूप, तेज तथा अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। माता की 10 भुजाओं में खड़ग, चक्कर, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, भुशुंडी, सिर तथा शंख हैं। सभी शरीर के सभी अंग सुंदर आभूषणों से सुशोभित हैं। माता भद्रकाली मंदिर की भीतरी दीवारों पर धार्मिक ग्रंथों पर आधारित बहुत से चित्र बने हुए हैं, जिनके प्रयोग किए गए रंगों की चमक आज भी वैसी की वैसी ही है। हाँ, ये मंदिर शायद जम्मू के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर बनने से पहले जहाँ छोटी सी देहरी में माता भद्रकाली के मोहरे थे, परंतु आज से लगभग 200 साल पहले मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह के शासनकाल में हुआ था। कहते हैं कि उस समय मंदिर में माता भद्रकाली की श्याम रंग की मूर्ति की स्थापना की गई थी। ये 4-5 मंदिर जो है जम्मू में ही स्थित है, पर लोगों को शायद इसकी बहुत बहुत कम जानकारी है। और इसका अभी रिसर्च शोध कार्य का विषय है कि अब ये कब बने थे, कब ये माता यहाँ की स्थापना हुई थी, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता कि ये पिंडी रूप में कब यहाँ आए। हाँ, महाराजा गुलाब सिंह से जब मंदिर बनवाए तो फिर उससे पहले ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इन प्राचीन मंदिरों की हमें अभी शोध की जरूरत है और हम शायद सब मिलकर कर भी रहे हैं। अब पर्व त्योहारों की बात, तो पर्व त्योहार वैसे तो मेले वगैरह लगते ही हैं, जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ मेले लगते हैं, लोकगीत गाए जाती हैं, कारके गाई जाती हैं, गाड़ी और जोगी इसको गाते हैं। बट जब नवरात्रे आते हैं, जब नवरात्रों के दिनों में जम्मू जो है वहाँ विशेष तरीके से मनाए जाते हैं। सबसे पहले तो जम्मू में बड़े तो करते ही हैं नवरात्रे, पर जहाँ छोटी लड़कियां भी नवरात्रे में भाग लेती हैं और बड़े उल्लास के साथ भाग लेती हैं। जैसे जिस दिन सबसे पहले उठना सुबह, और सुबह एक मोहल्ले में, एक गांव में एक टोली बन जाती थी। उस टोली की सारी लड़कियां इकट्ठी होकर किसी स्नान करने जाती थी। जैसे जहां पर नदी है, जहां पर बोली है, जहां पर दरिया है, वहां स्नान करना और वहां से पानी और रेत लानी। और उसके बाद एक घर को चुना जाता था जहां पर वो माता की स्थापना करती थी। बड़े भी मूर्ति, और हमारे यहाँ रिवाज था कि दीवार पर मूर्ति बनाई जाती थी। वो लड़कियां अलग से बनाती थी और घर में अलग से बनी जाती थी, जो महिलाएं थी। और वो मूर्ति चाक और अच्छी मिट्टी लाई जाती थी और उसको दीवार पर बनाया जाता था। उसमें कोडियां और सिक्के लगाए जाते थे सुंदर बनाने के लिए, और फिर चुन्नी ओढ़ी जाती थी एक। और ये सारी लड़कियां जो है वो माता की आरती करती थी, और उसके बाद शाम को भी इसका विशेष आयोजन होता था। और एक ही घर में, जिस घर में माता को आरती करनी होती थी, जिस घर को माता की मूर्ति बनाई जाती थी, उसी घर में सभी लड़कियां इकट्ठे होकर खाना खाती थी। और उस खाने को यहाँ पर कहा जाता है चूटी करना। मतलब एक घर में सभी लड़कियों ने खाना खाना और चूटी करना। उसके बाद कान सखियां, तो शायद उन्होंने भी बात की कि जहाँ कान सखियां बनती थी लास्ट दिन में, और इकट्ठे मिलकर जहाँ बहुत सारे लोग गीत है, उसमें सो माता सितरिये जाग, मतलब वहां पर हर मौके पर, नवरात्रि के हर मौके पर गीत गाए जाते हैं। जब ये नदी पर नहाने जाती हैं तब भी एक गीत गाया जाता है, जैसे 1 नराता, 2 नराते, 3 नराते, 4 नराते, 5 नराते, 6 नराते, 7 नराते, 8 नराते, 9 नराते, गंगा नाते, गंगा दे पिछवाड़ नाते। इस तरह बहुत सारे लोकगीत हैं जो नरातों के मौकों में महिलाएं, लड़कियां गाती थी, और फिर उसका विसर्जन होता था। फिर लास्ट वाले दिन कान सखिया बनने का रिवाज तो अब तो बहुत कम हो गया। जिस तरह कलकत्ता में बड़े बड़े पंडाल बनते थे, इस तरह जम्मू में भी बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते थे। और वहाँ ये बात है कि वहां पर लड़कियां, छोटी कंजकें बनती थी वहां पर, कान सखियां सुंदर बनाकर उनको, तो फिर लोग देखने जाते थे, मत्था टेकते थे उनको, और एक दूसरी जगह पे बहुत रौनक होती थी। अब आस्ता समय के साथ, जहाँ फिर लड़कियों को भी पास में समय नहीं है, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी विलुप्त होती जा रही हैं। और हम आशा करते हैं कि ये दोबारा से ये चीजें हों, थोड़ी बहुत चीजें दोबारा हों, इनको दोबारा से किया जाए,
क्योंकि हम तो इन मंदिरों को, जो मैंने अब मंदिरों के 4-5 मंदिरों के नाम लिए, तो इन मंदिरों को भी हम लोग शायद भूल चुके हैं ये मंदिर, क्योंकि इसकी वजह ये है कि वो मंदिर छोटे हो गए हैं। जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने, इससे पहले तो जहाँ कच्चे घर थे, अब अगर हम 300-400 साल पीछे जाए तो जम्मू बिल्कुल कच्चे घर थे सबके, और नेचुरली जो मंदिर थे वो भी कच्चे ही होंगे उस समय। पर महाराजा गुलाब सिंह ने बहुत सारे मंदिर यहाँ बनवाए, और मंदिरों के साथ साथ उन्होंने पुजारी जब नियुक्त किए होंगे, तो अब तो ऐसा हो गया है कि जो पुजारियों के घर जो है वो बढ़ गए हैं, मंदिर छोटा हो गया है। तो हमें इसके बारे में अभी तो हम रिसर्च करेंगे, पहले इस पर थोड़ी बुक छपेंगी, तो शायद आगे आने वाले टाइम में हम इसके बारे में कुछ डिटेल में ज्यादा बता सके। तो आप सबने मेरे को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोल सकी, और थोड़ा आगे डिटेल में शोध कार्य इस पे होगा, तो फिर हम बहुत ज्यादा इस पे बात कर सकेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट जो आपका प्रेजेंटेशन था वो सिर्फ जम्मू के आसपास के त्योहार या मंदिरों के बारे में नहीं था, पर बहुत सारे आपने रिसर्च एरियाज भी बताया कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को या इनफैक्ट इवन जो जिस तरीके से आपने बताया, तो बहुत सारी चीजों की डेटिंग या बहुत सारी चीजों की जो है अभी भी रिसर्च बाकी है, और हम जो है बहुत सारी चीजों को अभी तक जानते भी नहीं है। तो अगर उन इंफॉर्मेशंस को हम इकट्ठा कर सके, बुक्स पब्लिश कर सके, रिसर्च कर सके, रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेकर आ सके, तो हम इसके बारे में और विस्तृत जानकारी पा पाएंगे, और उससे जो है हम सभी को जो है लाभ भी होगा, और हम अपने संस्कृति और अपने त्योहार और अपने जिसे हम कहते हैं कि द सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्ट्स को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो थैंक यू नीलम जी once again for a beautiful presentation, and I hope to host you again जब हम इसका पार्ट 2 करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली उसको जो है हम ऑफलाइन ही करेंगे rather than ऑनलाइन। तो with this I guess so we have completed the people from our panel जिनको की presentations देने थे आपने। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र बांगरू जी को who will summarize the proceedings of today's presentation as well as present the vote of thanks. तो वीरेंद्र बांगरू जी, if you can hear me. नमस्कार नमस्कार summarize. नमस्कार, जय माता की। जय माता दी, जय माता की। जय माता की। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम के माननीय अतिथि, मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित गुप्ता जी, डॉक्टर नागेंद्र जामवाल जी, श्री सुमेर खजूरिया जी, केवल कृष्ण शर्मा जी, डॉक्टर नीलम सरीन जी, मनु खजुरिया जी, स्वर्ण सिंह कोहिस्तानी जी, डॉक्टर समंता जी और डॉक्टर अनिल तिवारी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जो व्याख्यान हमें दिया और हमें अवगत कराया यहाँ की जो शक्ति उपासना से, शक्ति जो शक्ति का केंद्र है यहाँ पर, उनसे अवगत कराया आपने। और जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हमें इसका जो हमें वैदिक टेक्स्ट में इसमें उल्लेख हमें मिलता है शक्ति उपासना का, शक्ति कल्ट का हम चर्चा कर रहे थे, और उसमें हमें कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं जिसमें शक्ति उपासना के बारे में उल्लेख किया गया है। और फिर महाभारत और रामायण और जो उसके बाद और भी जो हमारे पास पुराण आ रहे हैं, हमारे पास ब्रह्मांड पुराण है, ललित सहस्त्र नाम है, देवी महात्म है, इसमें भी विस्तार से जो है देवी की महिमा का गुणगान किया गया है। अब यहाँ पर जो हम सबसे पहली जो ये बात यह है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, ये ग्रंथों पर जो है शोध की आवश्यकता है पहले तो, जो हमारे पास उपलब्ध जो ग्रंथ हैं, और ये ग्रंथ जो है पूरे जो है देश में उपलब्ध हैं। ये ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इन बहुत सारे ग्रंथ तो प्रकाशित हैं, कुछ अप्रकाशित ग्रंथ हैं जो पब्लिश नहीं हुए हैं, जो ग्रंथ हैं वो भी हैं, और उसके साथ जो क्षेत्रीय भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो प्रकाश में नहीं आए हैं अभी तक, उपलब्ध हैं, लेकिन वो जो है पुरानी लिपियों में है, पुरानी जो भाषाओं में है, उसको अनुवाद करने की आवश्यकता है, जिससे वो लोगों तक वो जो है ज्ञान, वो दर्शन वो है हमें मिल सके। तो देवी का जो गुणगान है ये तो अनंत है, और जो है अनंत आदिकाल से ही जो है
जो है देवी की उपासना की जा रही है, और उसके जो है हम उसको जो है अभी जैसे ये प्रयास रहा कि उसको हम एक समय सीमा में बांधे, हमने उसको कैटेगराइज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम तो जो है पिछले कई हजार, 2-3 हजार साल का ही हमारे पास जो हम इतिहास को हम देख रहे हैं साक्ष्यों के आधार पर। लेकिन जो हमारा जो पुराना इतिहास है, अब हम महाभारत भी इतिहास ही है, और जो हमारे पुराण है वो भी इतिहास ही है। इसमें इतने राजाओं की वंशावलियां हैं जो है वो भी क्रमबद्ध रूप में हैं, क्रोनोलॉजीज हैं जो हैं। उस पर हमने ध्यान अधिक दिया ही नहीं है, उसको हमने कभी भी इतिहास ही नहीं माना। तो अब जो हमारे पास 2-3 हजार साल का इतिहास है, इसमें भी हम संशय में हैं कि हम जो है जो जो देवी की जो महिमा है, देवी की जो कथा है अनंत है, देवी जो सृष्टि की उत्पत्ति से ही जो ये देवी में की हम उपासना करते हैं, तो उसको भी हम जो है अब हम जो निर्धारित कालखंड है उसको हम देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। तो ये भी एक विषय है, वो साक्ष्यों को आधार पर हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोक गाथाओं की बात करते हैं, और जो लोक गाथाएं हैं ये भी अनंत काल से चली आ रही है। और लोक गाथाओं का लोक जो गान है, इसका प्रलेखन की आवश्यकता है, और जो वो इसलिए आवश्यकता है कि हम भाषा से ही दूर होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो 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 क्षेत्रीय जो ये लोक गाथाएं हैं वो लुप्त प्राय हो रही हैं, उसको प्रलेखन करने की आवश्यकता है। तो ये आगे हम समाज में ये सब चीजें रही। और जहां तक हम साक्ष्यों की हमेशा हम बात करते हैं, साक्ष्य की, और मुझे लगता है साक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हम जिस समाज का जो ये निर्माण हुआ है, उस समाज में जो है देवी शक्ति की, देवी जो महिमा है, देवी जो उपासना है, वो तो हमारे यहाँ पर हो ही रही है। तो हम उस चीज को देकर के आगे बढ़ें, और उसमें जो समाज को जो चाहिए वो हम उनमें से हम ले सकते हैं, उन चीजों को ले सकते हैं। जो है मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा जो है मनु खजूरिया जी का। उन्होंने बहुत ही उन्होंने ये उन्होंने जो है सार्थकता इसकी बताई कि जो भी हमारे यहाँ देवस्थान है और उससे जुड़े जो कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, वो हम कैसे सार्थक ला सकते हैं इस जो आजकल के कंटेम्पररी युग में, उसका क्या उपयोग हो सकता है और वो कितने सार्थक हैं। दूसरा जो है, आप तो इन रियल टर्म्स में अगर हम कहें तो आप कल्चरल एम्बेसडर हैं, कि जो हमारी जो संस्कृति है उसको आप विदेशों में उसका आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यू आर रियली एक्टिंग एज अ कल्चरल एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर नेशन इन फैक्ट। एंड देयर आर उसमें बहुत सारी धारणाएं हैं जो उसके साथ जोड़ी गई हैं, हमारे जो हमारे धर्म के साथ, हमारे जो है संस्कृति के साथ। तो उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जो है, जो इनमें एक सिंबोलिज्म है, जो एक शिक्षा प्रद ये सारी चीजें हैं, कि जिसमें इसमें समाज को शिक्षा मिलती थी कि इन सब जो हमारे ये जो हमारी जो लोक गाथाएं हैं, जो लोक में जीवन है, वो भी एक समाज को एक नई दिशा दे सकती है। तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत सारी जो हम अवगत हुए हैं, यहाँ पर जो जम्मू क्षेत्र में जो देवस्थान है, जो देवी के जो शाक्त से संबंधित जो प्राचीन स्थल है, उनसे हम अवगत हुए हैं। और बहुत नई नई चीजें सामने आई है इस संगोष्ठी के द्वारा। और मुझे लगता है कि इसमें आगे और कार्य करने की आवश्यकता है, और हम और इस तरह के हम संगोष्ठियां करते रहें, जिससे हम जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ की जो समृद्ध जो संस्कृति है वो सबके सम्मुख आ जाए। ये बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो है, इसमें जो जितने भी हमारे पास जो ओरल ट्रेडिशंस हैं उनको हमें प्रलेखन करना है। हम जो है हमारे पास जो शक्ति स्थल हैं, इनसे संबंधित जो है गीत हैं, इससे संबंधित जो भी कहानियां हैं, जो इतिहास है उसको संकलन करके हम भावी पीढ़ी के लिए हम रखें। यहाँ पर जो है ललित गुप्ता जी ने जो उल्लेख किया, जो सबसे प्राचीन जो साक्ष्यों के आधार पर जो
देवी पूजा है, देवी से संबंधित जो स्थान है उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर वो सामने लाने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने उल्लेख किया जो यहाँ में जो चीजें मिली हैं जम्मू से, और उसके बाद जो उन्होंने जो बात की है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय जो हमारे विचार हैं वो हम सामने रखें और उसका भी हम अध्ययन करें, उसका हम प्रलेखन करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, उस पर रिसर्च और पब्लिकेशन भी होना चाहिए। लेकिन हमें ये सब चीजें एक पैन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने की भी आवश्यकता है साथ साथ में, तो तभी हम सही दिशा की तरफ हम जा पाएंगे। तो ये भी है। और जो सुमेर खजूरिया जी ने जो है जो उन्होंने माता वैष्णो देवी के प्रादुर्भाव का उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया, और ये जो इतिहास है ये तो हजारों वर्षों का इतिहास है जो अब हमारे सामने आया है जो है। और इसके साथ इतिहास के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो आस्था है यहाँ पर। और अब इसके साथ साथ जो एक यात्राएं जो आती थी चारों दिशाओं से जो कन्वर्ज होती थी इस स्थान पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वो उसमें एक एकता का वो एक संदेश देती है जो ये देव स्थलों की एक यात्राएं जो इस पर है। और केवल कृष्ण जी ने जो है उल्लेख किया किश्तवाड़ जो क्षेत्र है ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है किश्तवाड़ का। यहाँ पर उन्होंने सरथल माता का और जो है और मचेल माता का उल्लेख किया। सरथल माता के बारे में जो है ये भी एक धारणा है कि ये जो देवी थी ये कश्मीर में जो है ये प्रज्वलन पीठ पर ये उसका जो है अबोर्ड था, और उसके बाद जब वहां पर बाहरी अतिक्रमण हुआ तो वहां उसके बाद उसने जो है कश्तवाड़ में जो है माता ने शरण ली। तो ये भी एक है। इसके साथ साथ जहाँ बात हो रही थी भद्रकाली की बात भी हुई। यहाँ पर जो जम्मू में स्थान है भद्रकाली का यहाँ पर एक पुराण है, वो जो है वासुकी पुराण जो है ये पुराण जो है ये भद्रवाह का पुराण है ये। और इस पुराण में विस्तार से उल्लेख है कि भद्रकाली का, और जो उनके भाई थे वासुकी नाग उनका उल्लेख है। और उनकी जगह जगह वासुकी नाग के पूरे जो है जम्मू क्षेत्र में और पूरे पहाड़ी क्षेत्र में जो है तीर्थ हैं, मंदिर हैं वहां पर। और ये भद्रकाली जो उनकी बहन थी, भद्रकाली का जो उनका जो स्थान है वो कश्मीर में है भद्रकाली का स्थान। और फिर वो जो उसके भाई जो है स्थानांतरण कर लेते हैं, वो कश्तवाड़ आ जाते हैं। एक पूरा पुराण में इसका जो पूरा इतिहास है जो है वो उसमें है। ये पुराण जो है वासुकी पुराण। तो ये मैं पहले भी मैंने आपसे उल्लेख किया कि जो हमारे जो ये पुराण हैं इनको भी जो लिखित हैं हमारे सामने उपलब्ध हैं, इनको भी पढ़ने की आवश्यकता है और इनको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद जो हमारा जो फोकलोर है जो बहुत ही रिच है, जो इंटेंजिबल फॉर्म में जो भी हमारे पास उपलब्ध है, नृत्य, संगीत, गीत जो इन शक्ति स्त्रोतों से जुड़ा हुआ है, इसको हमें डिटेल से प्रलेखन करने की आवश्यकता है, जिससे एक समग्र हम दृष्टि इस पर डाल सकें और आगे वाली भावी पीढ़ी के लिए भी ये संदेश जा सके यहाँ के समृद्ध इतिहास का। स्वरण सिंह जी ने जो है डुगर जो है प्रदेश जो क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र भी बहुत समृद्ध है और यहाँ पर जो है डुगर जो है गीत संगीत बहुत ही ये जो है समृद्ध है इस क्षेत्र का। इन्होंने जो है जो माता के थानों का उल्लेख किया, कालिका माता, शीतला माता, मल माता का। और जो है ये स्थान यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो जो है ये आस्था के स्थान है, दूसरा यहाँ पर जो है कला और वास्तु भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो एक कास्ट कला, वुडन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस क्षेत्र का और ये स्थान। और जो हम जो है कश्तवाड़ और भद्रवाह की बात करें तो वहां पर हमें कास्ट के मंदिर मिलते हैं, कास्ट कला के लकड़ी के मंदिर मिलते हैं और ये भी नष्ट होते जा रहे हैं और इनको भी ये प्रलेखित हो और जो है एक जन मानस में वो एक चेतना भी फैलाने की आवश्यकता है कि अगर वो नव निर्माण करते हैं यहाँ के मंदिरों का, वो भी लकड़ी में ही करें जिससे उनका जो वास्तु है वो रहे और वो भी एक अट्रैक्शन रहेगा टूरिस्ट के लिए, पिलग्रिमेजेस के लिए, एक आस्था भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये इस पर भी बल देने की आवश्यकता है। और नीलम जो है डॉक्टर नीलम जी ने जो है
जो जम्मू शहर की बात करिए, टेम्पल ऑफ सिटी तो कहते हैं, हम टेम्पल सिटी कहते हैं इसको, लेकिन जो आपने बताया कि परमेश्वरी में जो आपने 3 मंदिरों का उल्लेख किया, शीतला माता चिंतपूर्णी और परमेश्वरी माता भद्रकालिका, तो ये जो मंदिर हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मंदिर हैं इस क्षेत्र में जो जिनको जो है जिनको रेस्टोर करने की आवश्यकता है। और इसके अंदर बहुत सारे मंदिरों में म्यूरल पेंटिंग्स भी अभी हैं, मैंने देखा है कि, और वो भी अब खराब होती जा रही हैं और उन पर भी कोई ध्यान नहीं है। और इसके साथ साथ आपने एक उल्लेख किया कि जब नवरात्राओं के दिन दीवारों पर जो है माता की मूर्ति बनाई जाती थी, और ये बहुत सारी चीजें अब लुप्त भी हो जा रही हैं, और कहीं न कहीं हम प्रलेखन करें और जो है इनको हम सामने लाएं, इनको रिवाइव करने की भी आवश्यकता है। अब क्षेत्र के जो है स्तर पर इनको रिवाइव कर हम करें, और हम एकजुटता होकर करें। इससे एक समाज भी एकजुट होता है इसमें। और बच्चों के लिए हमें विशेष एक पाठ्यक्रम भी हम लाएं सामने की, जिससे बच्चे इन सब जो ये चीजों से अवगत हो, और ये हमारे पाठ्यक्रम में हो, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे पाठ्यक्रम का जो है बोझ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बच्चों पर। और उसमें जो कहीं जो संस्कृति है जो हमारी है, और जैसे मनु जो खजुरिया जी ने भी उल्लेख किया कि एक बच्चे के लालन पालन पूरे गांव का हाथ होता है, तो अब कहीं न कहीं वो हम उस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अब हम कहीं न कहीं जो है न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं हम, तो अब हमारे से वो जो है परिवेश वो छूटता जा रहा है। तो वो भी हम रिवाइव करें, किस तरह से हो वो। अब जो गांव अभी है हमारे यहाँ पर, जो गांव के क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग और जो शिक्षित वर्ग हैं, मुझे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए इसमें। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक भी आज जुड़े हैं, स्वरण सिंह जी खुद शिक्षक हैं, और ये रिवाइव करें इन चीज़ों को, या अपने निजी तौर पर रिवाइव करें। और मुझे लगता है एक आंदोलन सा पूरे इस क्षेत्र में होना चाहिए, ये संस्कृति को लेकर के। आंदोलन तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जब हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, या जब हमारी जड़ें ही नहीं रहेंगी, तो फिर और बातों की फिर क्या आवश्यकता रहेगी। मुझे लगता है एक पहचान जो हमारी संस्कृति से ही मिलती है, इस पर हम सबको मिलजुल करके हमें कार्य करना है। और और इसी कार्य में हम सब जो है आज सब इकट्ठा हुए हैं। और मुझे लगता है माता वैष्णो देवी जो है यूनिवर्सिटी है, और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, हम दोनों यही उद्देश्य है कि जो हमारी जो ये जो धाराएं हैं जो संस्कृति की हैं, ये प्रभावित रहे, और इसमें सबका योगदान हो, और हम सब इसमें जागरूकता सबकी इसमें बढ़े और रहे। और ये यहाँ जो शोध भी हो, प्रलेखन हो, और हम आगे इसमें बढ़े। तो धन्यवाद मैं आप सबका करता हूँ। मैं पुनः आप सबका एक बार सबका धन्यवाद करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि जो हैं डॉक्टर ललित गुप्ता जी का, डॉक्टर नागेंद्र जम्वाल जी का, श्री सुमेर खजुरिया जी का, केवल कृष्ण शर्मा जी का, डॉक्टर नीलम सरीन जी का, डॉक्टर मनु खजुरिया जी का, स्वरण सिंह कोहिस्तानी जी का, डॉक्टर अनिल तिवारी जी का, और मेरे मित्र डॉक्टर सामंता सारथी जी का, जिनके आप सबके सहयोग से ये संभव हो सका। और मुझे लगता है कि इसके बाद हमें, जैसे पार्ट 2 सामंता जी कह रहे हैं कि पार्ट 2 हमें आगे और बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जम्मू के जो अभी अनछुए हैं, और उनको भी हम इसमें कवर करें। और जो है दोनों ऑनलाइन मोड के बाद हम ऑफलाइन मोड में हम आए, और सब लोग हम इसको हम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस सांस्कृतिक ये हवन को आगे हम, और इसमें हम सब अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। Thank you, Virendra ji. Thank you so much for an elaborated account of the summarization of all the presentations and proceedings today. In fact, I must say that हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स या इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उसको इसीलिए कर पा रहे हैं या कर सकते हैं क्योंकि एक हमारी विचारधारा है. लाइक आई मस्ट से दैट वी आर हैविंग वन ऑफ द stalwarts of research and publication, as well as a very good human being who is the present Honorable Vice-Chancellor of our university, प्रोफेसर सिन्हा साहब, जो कि हमें हमेशा ही एक दृष्टि या एक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि भारतीय भाषाओं में
हिंदी में या फिर हमारे खुद के कल्चर में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको एस्टैब्लिश करने की या उसको प्रेजेंट करने की इन फ्रंट ऑफ द यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिमिलरली जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं श्री नागेंद्र सिंह जामवाल साहब, उन्होंने भी एक बेड़ा उठाया है कि हमारे जो प्रदेश की खासियत है, चाहे वो किसी लैंग्वेज को लेके हो, चाहे वो किसी एरिया के ट्रेडिशंस को लेके हो, कल्चर्स को लेके हो, इनको जो है दूसरे लोगों तक या अपने प्रदेश में भी जो है बहुत ज़्यादा, चाहे वो पेंटिंग्स को लेकर हो, आगे चल के जो है हम कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, इसको रीएस्टैब्लिश किया जाए या इसको प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने। सो मतलब जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर or say part 2 of this Shakti Cults, but I will say that it is not only going to be a part 2, there will be a series of presentations और हम जो है जम्मू एंड कश्मीर के बाकी लैंग्वेजेस या कल्चर्स और सारी चीज़ों को भी जो है जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दैट इज़ द आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, दैट इज़ द आइडिया ऑल्सो ऑफ द IGNCA New Delhi और the School of Philosophy and Culture at Shri Mata Vaishno Devi University as well, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को जो है जोड़ पाए। So I will formally like to thank all the presenters, say the chief guest of the function, Dr. Lalit Gupta ji, as well as Shri Sumer Khajuria साहब। शिव पादा जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए आज, लेकिन हम इनको इसके बाद जो है कनेक्ट करेंगे। फिर श्रीमती मनु खजुरिया जी, डॉक्टर नीलम सरीन, श्री केवल कृष्ण शर्मा जी, एज वेल एज श्री स्वरण सिंह जी जो आज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने अपने प्रेजेंटेशंस दिए और हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ अवगत कराया जिसको कि हम या तो भूल चुके हैं, जैसे नीलम जी बोल रही थी कि कुछ चीज़ों को जो है हम भूल चुके हैं या कुछ लोगों को, कुछ मंदिरों को या कुछ ट्रेडिशंस को भी जो है उसमें रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उसके डेट्स के बारे में नहीं पता या उसके जेनेसिस के बारे में नहीं पता। सिमिलरली मनु जी ने भी जो हमें प्रेजेंटेशन दिया उसमें जो चीज़ों के बारे में बताया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम बहुत बार जो है वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को देख रहे होते, जबकि अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं देख रहे होते और उसके कारण से कभी कभार भ्रांतियां होती हैं, फैलेसीज होती हैं। लेकिन मैं इन सभी चीज़ों के बीच में एक बार भुवनेश्वर गुप्ता जी का थैंक्स कहना चाहूँगा, बिकॉज आई हैव सीन कि वो हमारे साथ अंत तक जुड़े हुए हैं। द सेम गोज फॉर परमजीत सिंह जी एज वेल, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे। उन्होंने चैट्स में भी काफ़ी सारी मैसेजेस किए और जो है हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया। एंड बिलीव मी, मतलब जैसे हम प्रेजेंटेशंस देते हैं या हम जो से पार्टिसिपेंट्स बुलाते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड पैनलिस्ट होते हैं, वो भी जो है एक अच्छे व्यूअर या एक अच्छे ऑडियंस से जब जुड़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिस तरीके से आप लोग आज हमारे साथ जुड़े रहे, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि इनिशियली एक तो हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर पाए बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ग्लिच, और उसके बाद फिर इंटरनेट ट्रबल के कारण या द सो कॉल्ड जिसे कहना चाहिए साइबर अटैक के कारण हमें अपना प्रोग्राम फिर से री डिले करना पड़ा और धीरे धीरे थोड़ा सा लेट हो गया और आज शायद हम करीब करीब 1 घंटा एक्सटेंड कर चुके हैं अपने कार्यक्रम को। लेकिन जिस तरीके से आप लोग का साथ रहा या आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे अंत तक, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को, बोथ फ्रॉम द स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड कल्चर एट श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एज वेल एज फ्रॉम द एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान situated or located at and also from Center for that and from the Indira Gandhi Center of Arts and National Center for Arts से। और जिस तरीके से जैसे देखिए बहुत सारे लोग जो हैं आज भी हमारे अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग के कुछ काम थे तो उसके कारण से उन्होंने हमें मैसेज भी लिखा कि दे आर बिजी एंड देयरफॉर दे हैव टू लीव इन बिटवीन। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द आइडियोलॉजी कि हम सारे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े, अपने
जिसे कहना चाहिए कि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें और अपने आइडियाज को शेयर कर सकें एंड लेट अस मेक, मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब तो चले गए जो अमेरिका को ग्रेट कर पाए कि नहीं कर पाए वो मुझे पता नहीं, बट वी शुड मेक इंडिया अ फार बेटर प्लेस एज वेल एज अ ग्रेटर प्लेस टू स्टे एज वेल एज टू लिव एज वेल एज टू से एंजॉय, क्योंकि डिफरेंसेस को एंजॉय करना और सेलिब्रेट करना ज्यादा जरूरी है रादर देन डिफरेंसेस के कारण जो है डिस्टिंक्शंस क्रिएट करना, तो वो चीज है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल द स्पीकर्स एज वेल एज टू ऑल द पीपल who have joined with us till late today, and I hope and wish that we meet again both in online as well as in offline mode so that a better understanding can be created. So thank you all for everything which you have presented over here. Thank you. So much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.